जी हम लाइव हैं जी। अद्वैता जी, वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके ओके, हाँ दिख रहा है लाइव। धन्यवाद, आप लोग सब आमंत्रित हैं ये स्पेशल फोकस पर। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण विषय है और मैं भारतीय चित्र साधना को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पे एक लिखा है, इस विषय पे ज्यादा चर्चा करते हैं। और ये विषय है भारतीय सिनेमा में महिला पात्रों का प्रस्तुतीकरण। अंग्रेजी में हाउ आर women represented in Indian cinema। और इसके बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग पैनल जुड़ रहा है। मंजू बोरा जी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, बहुत पुरस्कारित हैं। और मंजू बोरा जी, वेलकम to our program, and we look forward to hearing from you, and thank you for joining us. Neetu Kumar ji hai, and she is a very well known journalist, film critic. Usually as a writer मैं डरती हूँ आप लोगों से, avoid करती हूँ, but it's good to engage with you. And ये अभी News 24 के साथ है, and she reviews films and is based out of Mumbai, तो आपका contact चलता रहता होगा फिल्मी दुनिया से। और आजकल तो फिल्मी दुनिया बहुत ही चर्चा में है, so we look forward to hearing from you आपकी insight इस issue पे, और इससे आगे भी नेपोटिज्म पे भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे क्योंकि वो बिल्कुल। और रूना जी भी जुड़ रही है हमारे साथ, and she is a journalist, covers politics, इंटरव्यू किया है मोदी जी को, अब्दुल कलाम जी को, वेरी इम्प्रेसिव, क्योंकि उन दोनों मोदी जी से तो इंटरव्यू करना तो बहुत मुश्किल होता है, समय ही नहीं मिलता। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वुड लव टू हियर अबाउट दैट एक्सपीरियंस समटाइम। एंड ऑल्सो फिल्म रिव्यू करती हैं और डिफेंस पे लिखती हैं, तो काफ़ी वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स पे लिखती हैं। सो इट्स वेरी नाइस टू हैव यू ऑन दिस टॉपिक एज वेल फॉर योर पर्सपेक्टिव। और मधुर भंडारकर जी भी जुड़ेंगे, वो आप जैसे जानते हैं बहुत ही पुरस्कारित निदेशक हैं और बहुत ही फीमेल सेंट्रिक या महिला केंद्रित फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है, निर्देशन किया है, और वो कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद मंजू जी, मंजू बोरा जी। We'll switch between English and Hindi. So, Ms. Bora, I'm very keen to know, you have had many decades in the film industry as a filmmaker, and I was keen to know on how you have seen the evolution of the representation of women in cinema from the start, from the time you started to the present day. Manju, you'll have to unmute your... हाँ, और we can also do it, जो host हैं वो भी unmute कर सकते हैं। अभी सुन रहे हैं? Yes, we can hear you. You can? Yes. फिर से आप क्वेश्चन देने से अच्छा रहेगा. Can you? Because I missed it. Not a Technical problem. Not a worry. Your voice is not coming. Okay, can you hear me now? No, very soft, very soft. Now, can you hear me? No. No, really? Now? Yeah, very low. Very low, very strange. It'll be easier. Can you hear me now, Manju ji? हाँ, बहुत लो आ रही है. फिर से आप बोलिए ना, क्या क्वेश्चन था? So my question really to you is, you've been in the industry for so long as a filmmaker. What are the changes that you have seen from the time you started to the present day in the representation of women on cinema? Yes. Actually, it is a great change, what I feel. Last 24 years, I am in this profession. And initially, I was feeling coming as a woman film director, it was a little bit difficult for the people to accept me as a filmmaker.
But now slowly time is changing, and during this last, I think 7-10 years of time, even in northeastern region of the country, lot of women filmmakers are coming up, and they are making great films. And now no more, I mean, they are considered as technically, I mean, inferior to the males, or they cannot handle this kind of work, this kind of job. That image is gone totally now. So people are quite confident. Even producers are coming to produce films with women filmmakers. So that is a great change, I think, because India as a whole is changing. आप देखिए पॉलिटिक्स में हो, सिनेमा में हो, लिटरेचर में हो, साइंटिफिक फिल्म में हो, जहां भी आप देखिएगा women जो टेक्नोक्रेट्स आ रहे हैं, इवन राजनीतिक पॉलिटिकल फील्ड में आप देखिए कैसा रोल वो लोग प्ले किया है. I feel that this is very good things that is happening in modern India, and I am very hopeful that it will improve more, and our girls can shine in different areas of work all over the country. And इसके लिए even the government is taking lot of pain, lot of care. जैसे अभी propaganda जैसा लगेगा, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ. I don't want to utter these words because it sounds like propaganda, but it is true. जब तक women, I mean girl child 100% educated नहीं होगा, तब तक सोसाइटी का जो स्टेटस है women का, वो स्टेटस कभी माने ये नहीं होगा, इम्प्रूव नहीं होगा. So I feel that 100% literacy will create a very different, very dynamic India, and I am hopeful for that. It is happening now, in fact. I was very happy to hear you say that producers are coming forward with funding for female-centric subjects, because I remember with my film Kahani, especially the character being a pregnant woman, we had a lot of trouble getting it greenlit, despite the fact that Vidya Balan had already said yes to the film. So the struggle is quite real. It's been about 6 years since then, but 7 years. But it's very difficult even now. So I'm very happy that your experience has been that more and more producers are coming forward, because नीतू जी, जब तक महिला केंद्रित फिल्में नहीं बनेंगी, प्रोड्यूस नहीं होंगी, हम तो कहानी लिख लेंगे, निर्देशक भी आ जाएगा, पर फिल्म जगत में एक रेजिस्टेंस सा है, और बिल्कुल मेल डोमिनेटेड स्टार सिस्टम भी है, जहां मैंने खुद देखा है कि अगर आप मेल हीरो को कास्ट कर लें तो महिला कोई भी का किरदार कोई भी वो ग्रेड होता है, जैसे A, B, C, और उसमें से कोई भी लड़की आप ले लीजिए अभिनेत्री को, और एंड दे डोंट इवन केयर, तो ये चेंज आपको क्या लगता है, आ रहा है कि आएगा कि कभी नहीं आएगा, क्या लगता है आपको? आपका वॉइस अभी भी इतना लो है ना, मैं क्या बताऊं, बहुत लो है आपका वॉइस. Anyway, the Kahani, it was such a lovely film. Even now, it is one of my favorites. So, देखिए, अगर making is strong, अगर subject is strong, I think all the producers, they have faith on good work. Nowadays, they want some substance, some content, good content. They want those kind of films. It is not that एक formula type की एक cinema होगी, they will come and just make fun out of it, they will earn some money. That those days are gone. So now we can see the change even in mainstream Hindi films. I'm very happy to observe. Earlier it was typical mainstream, commercial films with big heroes and all, with a formula type of one villain, one sub story, one main stories, and lot of then some item numbers, all those kind of things were there in those films. But nowadays, without those things also, I think you can watch a very beautiful film. Because generally, during those days, before 80s, films were, women were given such a status. They were just add-on to the films. It is not that they are the main characters. They were just add-on and over-sexualized. Those characters were very weak. You see, they used to use some vamp characters, even to show a rape scene. They go in such details that the main, the objective, the main aim to tell the people that it is not good. But in that process, they will show the whole process for which, the uneducated class will enjoy it so much. I still remember
I was watching that Bandit Queen in Delhi. I was in New Delhi at that time. So I went to see the film with my husband. It was such a powerful film. So when we were sitting there, we did not get seat in the balcony, so we had to sit in the, on the ground floor. So those people, when we have watched those rape scenes and all, I mean, it was so realistically done. So you feel so, those kind of, I mean, that exploitation on women, that attack on women, you feel so disgusted. But people were enjoying that. They were just whistling, they were enjoying. So I always say that censorship, why it is required in Indian cinema, because our audience is not yet ready to receive those kind of things. That realistic scenes, maybe that those are realistic way they are treating, but our audience is yet to get ready to receive that in that, in that manner. So I think the change is coming now, without a rape scene, without all those item numbers and, using a vamp character, one can see a beautiful, meaningful, with good content, a beautiful film nowadays. And that is a great change. The new generation filmmakers, I really respect them. जी और नीतीश जी, what do you have to say on this? आप you've been covering the industry for so long, और जो वही सवाल जो आपको लगता है कि फिल्मी दुनिया बदल रही है, बदलाव आ रहा है, जैसे मिस बोरा ने कहा कि 80 के दशक में महिलाओं को बेसिकली साइड कैरेक्टर्स होती थी, महत्वपूर्णता नहीं मिलती। I'm so sorry to interrupt, but sound is not there. This is a question for नीतू जी। जी, मैं ये बात बिल्कुल सही कहूंगी कि अभी कंगना रनौत, विद्या बालन जैसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके लिए फिल्में बनती हैं, वो अच्छी फिल्में भी करती हैं, इनकी फिल्में चल भी रही हैं, लेकिन ये रेशियो बहुत कम है। ये बिल्कुल सच है कि बॉलीवुड में फिल्में सिर्फ और सिर्फ हीरो के नाम पे बिकती है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव आया है। बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो फीमेल सेंट्रिक फिल्में कर रही हैं, लेकिन उनकी फिल्में बनने में टाइम लगती है। आपने बताया कहानी एक फिल्म उसमें से एक है, डर्टी पिक्चर एक फिल्म है जिसने वाकई में, वो साल 2011 दिसंबर का समय था जब वाकई में विद्या बालन की उस फिल्म से जो है बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को झटका लगा था कि एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म जो है वो 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर सकती है। कंगना रनौत भी ऐसी है, तनु वेड्स मनु जैसी उनकी फिल्में आई, उसका पार्ट 2 भी आया। उनको आप उनकी फिल्म क्वीन को देख लीजिए, ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे दिलचस्प किरदार फिल्मों में महिलाओं के लिए गढ़े गए। क्वीन में जो उनका रोल था एक बिंदास लड़की का जो अपनी मनमर्जी से करना चाहती है, शादी टूट जाती है लेकिन वो फिर भी अपने हनीमून पे जाती है, तो कहीं ना कहीं बदलाव है, पब्लिक ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन जरूरत है कि वैसी फिल्में और बने। और कंगना रनौत जो है वाकई में अभी वैसी फिल्में चुनती हैं, वो सिर्फ हीरो के साथ 4-5 गाने गाने के लिए या फिर कुछ रोमांटिक सीन करने के लिए फिल्में नहीं करती। तो कंगना, विद्या, इवन आलिया भट्ट को भी मैं कहूंगी कि उनकी फिल्म मैंने एक देखी थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, उसमें एक डायलॉग था कि मुझे तुम प्यार दे रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे सम्मान दो। तो मुझे लगता है जो इंडियन एक्ट्रेसेस हैं उनको बॉलीवुड में सम्मान की जरूरत है और वो मिलनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी हाल ही में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था और उसमें आलिया को अच्छा इंपॉर्टेंस दिया गया। कई एक्टर्स के मुकाबले जो है आलिया को इंपॉर्टेंस मिल रहा था और वो मिलना चाहिए। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। आज अगर बॉलीवुड की बहुत 10 बेहतरीन एक्ट्रेसेस की गिनती होती तो उसमें से एक आलिया भट्ट है। उनकी फिल्म आप हाईवे देख सकते हैं। तो हमारे बॉलीवुड में औरतों को इज्जत मिल रही है। आलिया, दीपिका, बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, प्रियंका चोपड़ा है, जिन्होंने हीरोइन का इज्जत बढ़ाई है, हीरोइन का मान बढ़ाया है। लेकिन ये अभी और बढ़ने की जरूरत है। वो जो 300 करोड़ 200 करोड़ जो हमारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनकी बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल ऐसी पकड़ है कि भाई इनके बिना तो फिल्म चलनी नहीं है, तो इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि हमारे बॉलीवुड में ऐसी सक्षम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शाहरुख खान के साथ, मैं आपको चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म है उसमें दीपिका पादुकोण, मैं ये बात दावे के साथ कहती हूँ कि दीपिका पादुकोण जो है शाहरुख पे हावी थी, उन्होंने उनको हरा दिया था उस फिल्म में। दीपिका जिस भी फिल्म में होती हैं वो हीरो को हरा देती हैं। माधुरी दीक्षित हमारी ऐसी एक्ट्रेस थी। हम आपके हैं कौन फिल्म जब आप याद करते हैं तो आपको माधुरी याद आती है, सलमान खान नहीं याद आते हैं।
उस फिल्म के लिए माधुरी को सलमान से ज्यादा पैसे भी मिले थे। तो हमारी बॉलीवुड में ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं, श्रीदेवी रही हैं, जिन्होंने पूरा 80 का डिकेड संभाला, एक से बड़ी एक सुपरहिट फिल्में, उनको स्पेशल अवार्ड भी मिला था। आपको बताएं कि 80 में कोई एक साल था जब फिल्म फेयर अवार्ड नहीं हुआ था, और वो पूरा जो है श्रीदेवी को स्पेशल अवार्ड दिया था, क्योंकि उस दौर में बॉलीवुड को श्रीदेवी ने संभाला था। माधुरी दीक्षित 90 के दशक में आई और उन्होंने बहुत सी उनकी एक लाइन उनके बारे में कहते हैं कि वो अपनी फिल्म के हीरो को कच्चा चबा जाती थी, और कहीं ना कहीं ये बात सच थी। और माधुरी दीक्षित ने वाकई बहुत सी फिल्मों में अपने हीरो को जो है बिल्कुल हराया। लेकिन जरूरत है कि ये जो ऐसी एक्ट्रेसेस जो हैं अभी भी हमारे बॉलीवुड में हैं, और उनको लेकर ऐसी फिल्में बनाए, लोग ऐसी सोच बदले। पहले ये था एक बार जब ये कहते थे कि माधुरी दीक्षित फिल्म में आ गई तो फिल्म हिट है। माधुरी ने अनिल कपूर के भाई हैं संजय कपूर, उनको राजा जैसी हिट फिल्म दिलाई। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उनका दम था बॉलीवुड में। तो ऐसा है कि बॉलीवुड में हर दशक में हीरोइनों का दबदबा रहा है, लेकिन 70 और 80 का जो दशक है, जब एंग्री यंग मैन आया, और जब 80 के दशक में जब क्राइम रिलेटेड फिल्में बनने लगी, 3-4 हीरोज होते थे, उसमें छोटे छोटे रोल हीरोइनों को मिलते थे, तो वो दो एरा जो ऐसा है जो महिलाओं के लिए बहुत, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित और तब्बू हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, आलिया भट्ट है, रेखा हो गई, रेखा ने भी बहुत सी दमदार फिल्में की, हेमा मालिनी, ये तमाम एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में महिलाओं की के सम्मान को बढ़ाया है। और अब इस सम्मान को वाकई में जो फिल्मों में जो पैसा लगाते हैं वो लोग भी इस अपने नजरिए को बदले, और महिलाओं की जो सेंट्रिक फिल्में हैं उस पे पैसे लगाए। अभी जैसे शकुंतला देवी फिल्म आ रही है विद्या बालन की, इसमें कोई दो राय नहीं कि मिशन मंगल जो फिल्म आई थी, अक्षय कुमार पे हावी थी विद्या बालन। अब मैं ये महिला होने के नाते नहीं कह रही हूँ, एक्टिंग के वाइज अक्षय कुमार पे वो हावी थी। और लेकिन जब वही विद्या की अकेली अभी फिल्म आ रही तो उस फिल्म को इतना शोर नहीं मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लगता है गलत है ये मानसिकता। इवन हम मीडिया के लोग भी सलमान, शाहरुख और अक्षय कुमार की खबरें ज्यादा लिखते हैं, और हालांकि अभी कंगना रनौत ने इसको तोड़ दिया है, अभी चारों तरफ वही छाई हुई है। लेकिन ये एक सच है कि हीरोइन को जो है और सम्मान देने की जरूरत है, और ये होना चाहिए। जैसे मीना कुमारी को सम्मान मिला था, नूतन को सम्मान मिला, आप नरगिस की बात करें, जो कह सकते हैं कि बॉलीवुड की अगर 10 टॉप 10 महिला किरदार तो सबसे पहला नाम मदर इंडिया का आता है। तो महिलाओं ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। जो 50 और 60 का दशक था उस दौर में एक्ट्रेसेस भी हावी थी हीरोज पे। आप चाहे मधुबाला को ले लीजिए, नूतन को ले लीजिए, चाहे आप नरगिस को ले लीजिए। राज कपूर की फिल्मों में ऐसा नहीं होता था कि बस राज कपूर होते थे, उसमें नरगिस का भी उतना ही वो इम्पोर्टेंट रोल होता था। मुगले आजम में अगर आप मधुबाला को हटा दे तो मुगले आजम में वो अनारकली ही लोगों को याद आती है। पाकीज़ा फिल्म को हम ले सकते हैं जिसको मीना कुमारी ने किया। मीना कुमारी की सभी फिल्में जो उसमें उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, ट्रेजेडी क्वीन जो थी, तो उनकी फिल्मों में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। और यही वजह है कि आज भी जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, उनका बर्थडे होता है, तो लोग उनके ऊपर हम खबरें बनाते हैं, उनके ऊपर हम शोज बनाते हैं। तो महिलाओं ने बॉलीवुड में अपना दमखम दिखाया है, आज भी दिखा रही हैं। आज दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, इवन कटरीना कैफ, करीना कपूर, 20 साल से करीना कपूर बॉलीवुड में टिकी हुई हैं। 2000 में लॉन्च हुई थी, लेकिन बतौर फीमेल लीड एक्ट्रेसेस बन रही हैं। लाल सिंह चड्ढा उनकी फिल्म आने वाली है, तख्त फिल्म उन्होंने साइन कर रखी है और हिट फिल्में दे रही हैं। तो समय बदला है, इसमें कोई शक नहीं। और बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस ने बहुत उम्दा फिल्में दी हैं। आप करीना की बहन करिश्मा की भी बात कर ले तो जुबैदा और फिजी जैसी वो समझ गए। हाँ जी, वो आ गया। वह वापस अपने टॉपिक का विषय पे चलते हैं। और थोड़ा ये जो आपने शकुंतला का नाम लिया, वो अन्नू मेनन डायरेक्टर है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है जी, दौरान थोड़ा मुश्किल भी होता है प्रमोट करना। वो खुद लंदन में रहती हैं, पर उन्होंने बहुत परिश्रम किया, पिछले 2 महीने में कंप्लीट की है। में तो महिलाएं सामने आ रही है जो निर्देशन कर रही है,
एक नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि जैसे अनु मेनन है कोई, उनका जो टीम जो भी बनता है, जो बॉयज क्लब चलता है बॉलीवुड में, वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट मेल गेज हम अंग्रेजी में कहते हैं, व्हिच इन्फ्लुएंसेस यू नो व्हाट वी सी ऑन स्क्रीन। एंड मधुर भंडारकर जी जुड़ गए हमारे साथ। ही इज वन who makes a lot of female centric films. Hi. पर रूना जी, हम लोग we'll go back to the representation of women in cinema. आपको क्या लगता है, ये अभी लग रहा है जो ये आइटम सॉन्ग का दौर जो है थोड़ा बहुत इट्स पीटरिंग आउट, खत्म हो रहा है, and you know but we have gone through different phases ऐसे जहाँ women have been over sexualized, objectified, and you know they have been used as props in films, you know, बस एक cut out character है, कोई character development नहीं है, कुछ नहीं है. And how do you see that changing? Do you changing? Even someone like Kangana Ranaut, whose Manikarnika did over 100 crores, never really got the credit for her film doing that kind of business. So even when women, their movies do that kind of business, कोई acknowledge भी नहीं करता. That's very true. आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं. मेरे हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चीजें होती हैं जिसमें हमें बात करने की जरूरत है. एक तो एक्टर कौन है, जिनके बारे में नीतू ऑलरेडी बता चुकी हैं, जो बड़े रहे हैं. दूसरा डायरेक्टर कौन है. मधुर जी, आई रियली लव योर फिल्म बट आई हैव सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. सॉरी नहीं, it's okay यार, रूना, it's okay यार. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कहानियां ऐसी होती है, कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसको फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाना चाहिए. अगर मुझे कोई लड़का परेशान कर रहा है तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाएंगे कि मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस खराब आ रहे हैं, बट इंटरनली व्हेन आई एम अ वुमन, मुझे फिल्म पोर्ट्रे करते टाइम या एक्टर्स को डिटेल करते टाइम ये समझ में आएगा कि वो सिर्फ फिजिकली उसका अपीयरेंस खराब नहीं हो रहा है, उसका कहीं अंदर से भी अपीयरेंस खराब हो रहा है. वो शायद घर में जाकर अंदर रोएगी अपने घर में या अपने रूम को बंद करके. तो वो जो पेन होता है, वो पेन अलग से दिखना बहुत जरूरी है एज एन एक्ट्रेस, और वो दिखाने के लिए जो एक फीमेल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत जरूरी है. थोड़ा सा सैड पार्ट मैं कहूंगी, पिछले कुछ कई समय में ये रहा है कि फीमेल डायरेक्टर्स बहुत कम रही थी. नाम सही प्रांज पे जी का लूंगी, या फिर कल्पना जी, अन्ना राजे जी हैं, वो उन्होंने अपने तरीके से चीजें दिखाने की कोशिश की है. लेकिन पिछले कुछ समय में एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये नजर में आया कि बहुत सारे फीमेल डायरेक्टर्स काम कर रही हैं. गौरी शिंदे का नाम ले लूं, इंग्लिश आई एम टेलिंग यू, मुझे जाने कितनी फीमेल्स से हम लोग जब हाउस वाइफ से या फिर फ्रेंड्स में से किसी से बात करते हैं, शी सेज कि हाँ, जब कोई मेरी बहुत दिनों बाद कोई तारीफ करता है तो मैं शॉक में चली जाती हूँ. मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया. वो जो इमोशन है, वो जिस तरीके से इमोशन को निकाल कर लाना है, वो फीमेल डायरेक्टर्स जो लाती हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत जरूरी है. या फिर फॉर दैट मैटर अगर इंग्लिश के अलावा डियर जिंदगी में गौरी ने अगेन जो बात की थी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है, और हम फीमेल को, या आई विल इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो, हम काम में बिजी हो जाते हैं. हम फीमेल को बोलने का बताया ही नहीं गया है दैट यू नो व्हेन यू आर नॉट लाइकिंग इट, बोल्डली सह दो, उसको कह दो, उसको सहन करने की जरूरत नहीं है. कहीं थोड़ा बहुत मुझ में होगा, कहीं थोड़ा बहुत अलग लोगों में होगा, और कहीं बहुत सारा दूसरी लेडीज में होता है. वो जो नहीं करने वाला कैटेगरी होती है किसी फीमेल की लाइफ में, वो बहुत ज्यादा होती है, और उस कैटेगरी को लोगों के सामने लाने के लिए एक फीमेल डायरेक्टर बहुत अच्छे से उसको न्याय दे सकती है. एक दो और जिंदगी नाम लेके दोबारा मुझे इसलिए भी एक नाम लेना चाहूंगी क्योंकि एक फीमेल डायरेक्टर इज टेलिंग कि जिंदगी को जीने के लिए 3 मेल एक्टर्स हैं मेरे पास. वो जिस तरीके से उन्होंने वीव किया था, वो भी मैं भूल नहीं सकती. एक और फिल्म जो कि दिल धड़कने दो, उसमें प्रियंका का रोल बहुत अच्छा था. शी इज नॉट लाइकिंग द मैरिज, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है हस्बैंड की तरफ से भी एंड अपने फैमिली की तरफ से भी, क्योंकि उसकी मम्मी हैज गॉन थ्रू समथिंग, सो शी उसको इनकलकेट किया है उसने नेक्स्ट जनरेशन में भी. ये जो थॉट प्रोसेस, जो अंडरकरंट थॉट प्रोसेस चलता है, वो एक फीमेल डायरेक्टर जब लेकर आती है तो बहुत आइडेंटिफाई होता है और बहुत जस्टिफाइड लगता है. आई थिंक तीसरा पार्ट जो आता है, एक्टिंग, डायरेक्टिंग और व्यूअर्स चेंज हुए हैं. अगर मैंने वो टाइम देखा है जहाँ पे एक हीरोइन बड़ी हो, एक हीरो अगर है तो उसकी बहन है तो वो पॉसिबली उसका रेप ही होगा, और उसकी जो माँ है वो बीमारी होगी और बीमारी की वजह से वो मर ही जाएगी. वहां से लेकर निकलकर यहाँ तक आना जहाँ वो एक हीरोइन है या फिर एक सिस्टर भी है, तो वो जाके बोलती तुम जाओ लड़ो, मैं देख रही हूँ. और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, जो साइड कैरेक्टर्स जो आपकी सोसाइटी में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन लोगों में बहुत चेंजेस आए हैं.
इनफैक्ट एक यस बॉस करके फिल्म हुआ करती जिसमें हीरो की माँ बोलती है कि इट्स ओके अगर तुम अपने करियर को लेकर इतनी एम्बिशियस हो रही हो, एम्बिशियस होना सिर्फ एक मेल रिप्रेजेंटेशन में ही क्यों होता है, फीमेल भी तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है उस चीज की, कि उसके भी तो कुछ महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं। आई थिंक वहां से चीजें बहुत चेंज हुई हैं। उसके बाद लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, सेक्सुअलिटी, इट्स स्टिल अ बिग नो नो। वहां पे फीमेल क्या सोचती है इस चीज को लेके, चाहे वो 50 साल के उम्र की हो या फिर वो यंग लड़की हो, या फिर उसको बताया जाए कि इट इज नॉट अ गुड थिंग बेबी नॉट टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक वो सब चीजें जब एक फीमेल पर्सपेक्टिव से आती है तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। और दर्शक बड़ा हो रहा है, दर्शक चेंज हो रहा है, जनरेशन चेंज हो रही है। और अगर मैं मेरे बच्चों को बोलूं कि बेटा हम लोगों के टाइम में हमने ऐसा किया, मम्मा दैट वाज अदर जनरेशन। सो जो नेक्स्ट जनरेशन वो प्रिपेयर्ड है नई चीजें एक्सेप्ट करने के लिए। आई थिंक द एरा इज वेरी ब्यूटीफुल, द एरा इज रियल गुड एरा फॉर फीमेल एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एंड पीपल आर देयर टू absorb it. This is what I think. Thank you so much. A very optimistic note you sounded on the whole scenario. I hope जो लोग इन्वेस्ट करते हैं फिल्मों में वो देखते हैं, क्योंकि OTP के बाद भी काफी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं महिला केंद्रित कहानियों के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और मधुर भंडारकर जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वी ऑल नो हिम, मल्टीपल नेशनल अवार्ड विनर, फिल्म फेयर अवार्ड। अगर मैं अवार्ड्स ही गिनती रहूं तो 6 बज जाएंगे मधुर जी। So I will stop now, but everybody, and he started making centric cinema at a time mainstream, जो हम कहते हैं mainstream directors उसको नहीं करते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा माधुर जी कि why did you pick such a genre? Why did you go for the big budget Salman Khan wanted Tamil remake, or 100 crores, those kind of films? आपने you decided to go with these smaller, heartfelt, female-centric stories. देखिए ऐसा है अदिता कि when you make, I know a lot of people have asked me कि you make very topical films या आप बहुत ही महिला प्रधान फिल्में बनाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिल्में होती है और वो किसी तरह का अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग इश्यू, अलग अलग टॉपिक होता है। मैं कंफर्टेबल था, मैंने चांदनी बार बनाई 2001 में। उसके बाद एक कंफर्ट लेवल मुझे मिला कि मुझे लगा कि ये वर्ल्ड जो है मेरे को दिखाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सत्ता, पेज 3, कॉर्पोरेट, फैशन, हीरोइन, इंदू सरकार, लास्ट जो इमरजेंसी बैकड्रॉप में फिल्म थी, तो मैं कंफर्टेबल हूँ। ये बात जैसे रुना ने कही, बराबर कही कि बहुत जन ऐसा पूछते हैं मुझे कि पेज 3 में एक मेल जर्नलिस्ट क्यों नहीं हो सकता, या फैशन में एक मेल मॉडल क्यों नहीं हो सकता, या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक वो क्यों नहीं हो सकता, अपना जैसे कि मेल क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में ऐसे कई सब्जेक्ट। एक मिनट, मैं आई जस्ट रिमूव माय डॉग इज देयर, 1 सेकंड। No problem. No problem. Sorry, I'm back over here. Sorry. What breed is your dog? Chihuahua. Oh, okay. So small है वो, तो I don't know she entered inside, तो anyway. तो coming back, तो मुझे लगा कि इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का टॉपिक, इस तरह का इश्यू हमारे देश में बनता नहीं है। बहुत कम जन होता है। मुझे याद है इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलता है कि लोग बता रहे महिला प्रधान क्या फिल्में बनाते हो। अभी मैंने देखा है अदिता, पिछले 5-6 साल में मैंने देखा है कि कहीं पिक्चरें जो है मेरे कंटेम्प्रेरी या इंडस्ट्री के लोग ने बनाना शुरू किया है। पहले बिल्कुल नहीं बनाते थे। लोग कहते रहे मधुर बनाता है, मधुर ही चला सकता है, बाकी हम लोग नहीं बनाते, हमको इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में कई ऐसे टॉपिक, ऐसे इश्यू जो महिला की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना जरूरी है। और मुझे लगता है कि मैंने जितनी दिखाए, जो अलग अलग तरह के वर्ल्ड दिखाए इनके, वो बहुत जरूरी भी होता है। और ये बात सही है कि हमेशा ऐसा होता है कि महिला प्रधान फिल्म को इतना सपोर्ट नहीं मिलता कि जितना होना चाहिए। एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म को लेके हम लोग जाते हैं तो हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत पैसे भी लगाने तैयार हो जाते हैं लोग। फिल्म जैसे महिला प्रधान बना तो उसका फिल्म समझ लो उसका बजट आधा हो जाता है कि नहीं यार इसके अंदर इसमें ये करो। हीरोइन को भी बोलेंगे प्राइस कम ले लो, इसको भी बोले प्राइस कम ले लो, डायरेक्टर को भी प्राइस कम ले लो।
लेकिन मुझे मेरी पर्सनैलिटी में मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही रेस्टलेस फिल्म मेकर हूँ। मुझे लगता है कि कोई टॉपिक या इशू मुझे मिला, उस पर फिल्म बनाना इमीडिएटली जरूरी है, मैं वेट नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जाके हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो महिला केंद्र होना चाहिए, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना जरूरी भी है। और मैंने जितनी फिल्में बनाई हैं वो बात पहुंची भी है लोगों तक जाके पहुंची, जिसको ना कि क्रिटिकल अक्लेम बल्कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पे भी लोगों ने उससे सराहा, पसंद किया है, चाहे वो नेशनल स्तर पे हो या इंटरनेशनल स्तर पे हो। तो एक बात मैंने देखा है कि पिछले 8-10 साल में एक सिनेरियो बदला है कि कहीं फिल्म मेकर्स है, कहीं प्रोडक्शन हाउस है, अभी भी वो चाहते हैं कि महिला प्रधान फिल्में बनाना। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि बजट वो उतना मिलता नहीं है आपको। बजट के अंदर आपको बड़े स्टार की फिल्म के अंदर ही आपको बजट मिलता है। महिला प्रधान फिल्म में आपको एक लिमिटेड बाउंड्री में आपको खेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो जिस समय मैं बनाता था फिल्में और अभी बनाता हूँ, थोड़ा बजट बना है, थोड़ा स्तर बना है। मल्टीप्लेक्स आने से, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी जो पिक्चर का एक राइट्स का जो एक अलग से राइट्स आता है, तो उससे थोड़ा सा आर्थिक रूप से फर्क पड़ा है। Okay, and आपकी जो लास्ट फिल्म थी सरकार was on a very controversial हिंदू सरकार, हाँ, Hindu Sarkar, on a very controversial character. What was the challenge of recreating एक real life female character जिसके गुण थे, बुराई थी, और उनको to bring her to life? देखिए मुश्किल तो हर पिक्चर में आई। मैंने जितनी पिक्चर की रिसर्च की है, लोगों से मिला, इंटरेक्शन करके बनाई, चाहे चांदनी बार हो, पेस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, फैशन हो, हीरोइन हो। लेकिन हिंदू सरकार जो बनाई वो फिक्शन कैरेक्टर को हमने रखा, लेकिन उसको रियलिटी बेस पे उसका जो रिसर्च किया हमने, जब 1975 में जो आपातकाल का समय था, 2 साल का, 75 to 77, तो उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह की हुए थे। मैंने दिल्ली में आके मैंने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी से बहुत रिसर्च किया, लोगों से मिला, अलग अलग तरह के लोगों से मिला मैं, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे हैदराबाद में, जो आपातकाल भुगत चुके थे, उन्होंने देखी थी बड़ी, जैसे तुर्कमान गेट है आपकी दिल्ली में, वहां पे मैं आया, वहां पे किस तरह बस्ती उजाड़ी गई थी, किस तरह से वहां पे हालत खराब हुई थी। तो कहीं इस पे रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। और फिर हमने बहुत डॉक्यूमेंटेशन उसके देखे, हमने बहुत रिसर्च मटेरियल निकाला, चाहे उस वक्त की डॉक्यूमेंट्री है, जैसे मैंने कहा दूरदर्शन ने 5 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री बनाई इमरजेंसी पे पूरी, वो हमने देखी। कहीं और बुक्स पढ़ी हमने, कोमी कपूर की हमने किताब पढ़ी थी इमरजेंसी, कुलदीप नायर साहब की मैंने बुक पढ़ी। तो ऐसा कहीं जाके रिसर्च में वो मटेरियल मिलके हमने, कीर्ति कुलारी जो मेरा प्रोटैगनिस्ट, हु प्लेड द प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म, बहुत ही कमाल का उसने रोल किया, बहुत ही इसकी तारीफ हुई, लोगों ने उसे सराहा। तो इस तरह की फिल्म बनाने में भी आपको दिक्कतें आती है। और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, तो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी। लोगों को ऐसा मुझे लगा कि आपको दूरदर्शन 5 एपिसोड दिखाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं है, लोग किताबें लिखते हैं आपातकाल पे, लोग ब्लॉग लिखते हैं, लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं टेलीविजन चैनल्स पे, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप एक फिल्म बनाते हो तो उस पे आप जाके आप वहां पे आपकी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बाधा डालते हो, आप एफयूजी जलाते हो, आप उसके मेरे नाम पे जो नारे लगाते हो कि भाई अपने इमरजेंसी में फिल्म बनाई, हम छवि खराब कर रहे हैं। जो मैंने दिखाया है, जो मैंने बताया है, वो जो है पब्लिक डोमेन में है। ये मैंने अपनी मन भर नहीं सोचा कि मेरे दिमाग में ये आया ऐसे भी दिखाओ बोल के। तो जो, क्योंकि मेरा एक हमेशा ट्रेल रहा है पिक्चरों का, अगर देखने जाओ तो एक स्टाइल रहा है पिक्चरों का, जिसमें मैं बहुत ही पीछे की चीजें दिखाता हूँ, खुलासे करता हूँ या दिखाता हूँ। मुझे याद है जब अदिता मैंने हीरोइन बनाई थी करीना कपूर की, सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म थी जी, 24 करोड़ का ओपनिंग था उसका वीकेंड का, करीना कपूर की करियर की बेस्ट फिल्म है। तो बहुत से लोग मेरी फिल्म इंडस्ट्री में नाराज हुए थे मेरे से कि अरे यार तुमने तो हमारी इंडस्ट्री की जैसे कहते बैंड बजा दी, आपने बहुत ही सच्चाई दिखा दी, मीडिया कैसे हैंडल होता है, किस तरह से मीडिया को पहले से बुलाया जाता है, और कई चीजें आपने रियल लाइफ से ली है, जो बहुत से हीरोइन की लाइफ की कहानी है मैंने उसमें डाली बोल के। मुझे ऐसा लगा कि मैंने जब कॉर्पोरेट बनाई, पेस्ट्री बनाई, फैशन बनाई, या चांदनी बार बनाई, सत्ता बनाई, मैंने हमेशा उन जगह का, उन चीजों का मैंने डॉक्यूमेंटेशन बड़ा रियल किया है। लेकिन अगर मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में सच्चाई से नहीं बताता कि एक सुपरस्टार की कहानी के वो भी कितनी पीड़ित है, किस तरह से वो अपनी लड़ाई लड़ती है कैंप सिस्टम से, जैसे हम बात कर रहे हैं आज की तारीख में बहुत कैंप सिस्टम, लॉबी सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ये मैंने
12 में बताया था कि कैंप सिस्टम, रोल कैसे काटा जाता है, किस तरह से आपको पिक्चर से बाहर निकाला जाता है, किस तरह सुपरस्टार की एक्ट्रेस जो है वो कॉल लेती कि हीरोइन पिक्चर में कौन रहेगी। तो कहीं ऐसी चीजें मैंने उसमें दिखाई थी, तो लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल रहा, उनको लगा कि बहुत ही सच्चाई इसने दिखाई। लोगों ने करीना कपूर को ही फोन किया कि यार बहुत ही आप लोगों ने बहुत रियलिस्टिक बना दिया ये। तो मुझे लगता है कि जब फिल्में बनाते कभी कभी ऐसा लगता है जब रियल लाइफ में हमको तो उल्टा फिल्टर करना पड़ता है, हमको सेंसर पास करना पड़ता है, लोगों को दिखाना पड़ता है पिक्चर कि किस तरह से, लेकिन हमको इस तरह की बाधा आना पड़ता है। इस तरह की फिल्में बनाता हूं मैं, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोगों को लगता है कि ये बड़ा अनकंफर्टेबल फील कराता है, सच्चाई दिखाऊंगा। कई ऐसे एक दो सब्जेक्ट है मेरे पास अभी भी जो बनाना है जो फिल्म इंडस्ट्री के बैकड्रॉप पे है, लेकिन कहीं लोग डरते हैं, अरे नहीं यार ये बनाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा, या ये फंड नहीं करेगा, या वो एक्टर मेरे साथ दूसरी पिक्चर में काम नहीं करेगा, ऐसी चीजें हो जाती है। जी जी बिल्कुल। और ये पे गैप भी रहता है बिटवीन मेल एंड फीमेल एक्टर्स, और वो भी एक चीज है जो अगर जब आप वैल्यू, व्हेन यू लुक एट द वैल्यू ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्वड विद द फिल्म, 100% पे गैप तो रहता है अदिता। मुझे लगता है कि जैसे मैं आपको कहूंगा कि लोग कहते हैं कि हीरोइन को जो पैसे क्यों नहीं मिलते जो हीरो को मिलते हैं। देखिए क्या है ना, वर्ल्ड ओवर ऐसा है कि जब भी हम पूछते हैं, ये आज से नहीं बचपन से हम पूछते हैं, अरे हीरो कौन है, कभी किसी ने पूछा हीरोइन कौन है बोल के? ये नहीं पूछते हम। हमेशा पिक्चर की जब बात करते हैं, हु इज द हीरो इन द, हु इज द स्टार इन इट, तो पहला हीरो की बात करते हैं। जब कोई भी बड़ी पिक्चर, चाहे वो प्रियंका हो, कंगना हो, आलिया भट्ट हो, करीना कपूर हो या दीपिका पादुकोण हो, उनकी पिक्चर वही लेवल पे अगर जाती है, किस खान की जाती है, ऋतिक रोशन की, अक्षय कुमार की, अगर जाके थिएटर में पिक्चर देखे ना, तो उस दिन हीरोइनों को भी उतना पैसा मिलेगा जितना कि हीरो को मिलता है। अगर उसकी भी ओपनिंग जाके वीकेंड इतनी बड़ी होगी कि जैसे एक बड़े स्टार की पिक्चर के लोग आप जाते हो कि कहते हैं यार पिक्चर, तब वो डिस्पैरिटी आउट हो जाएगा, तब वो हीरोइन को भी उतना ही मिलेगा, इंपॉर्टेंस मिलेगा कि जितना हीरो को मिलता है। जी नीतू जी, कृष्णा जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस बिकॉज यू आर सो फेमिलियर विद द इंडस्ट्री और उसका इंटरनल पॉलिटिक्स। व्हाई कांट हीरोइंस, अभिनेत्रियां एक साथ मिलजुट के आके डिमांड क्यों नहीं करती है कि पे गैप नहीं हो, कि हमको इक्वल फुटिंग मिले? व्हाई डू यू थिंक कि दे आर नॉट एबल टू कम टुगेदर? आपका ऑडियो ऑफ है। हाँ, ये एक सच्चाई है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन को हीरो से बहुत कम पैसे मिलते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई थी स्ट्रीट डांसर, जिसके लिए कटरीना कैफ को फिल्म का जो हीरो था उससे आधी से भी कम पेमेंट मिल रही थी। कटरीना ने वो फिल्म छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, फिल्म की जो हीरोइन है उसको, जो हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं उनको वाकई में स्टैंड लेने की जरूरत है। और ये एक सच्चाई है कि अभी नेपोटिज्म का बहुत, आउटसाइडर की बहुत बात होती है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी आउटसाइडर्स हीरोइंस है, जिनको मतलब अपने अपने आप को बॉलीवुड में बरकरार रखने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सी एक्ट्रेसेस को सबके साथ फ्रेंडली रहना पड़ता है, सबके साथ हीरो जितने हैं उनके साथ फ्रेंडली रहना पड़ता है। लेकिन अपनी पेमेंट को लेकर ये एक सच्चाई है कि बहुत सी एक्ट्रेसेस जो हैं वो खुल के नहीं बोलती। उनको लगता है कि मुझे फिल्मों में काम मिल रहा है और हमारे आसपास की जितनी जो मेरे साथ की एक्ट्रेसेस हैं उनसे मुझे थोड़ा ज्यादा मिल जाए, बस इसी में वो खुश हो जाती हैं। और फिर एक अपनी जो उनकी खबर है कि इस एक्ट्रेस ने इस फिल्म के लिए इतना चार्ज किया और वो जो है हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई हैं। तो ये एक सच्चाई है कि जितनी भी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, अगर वो एकजुट होकर इसकी बात करें तो शायद जो है आगे बॉलीवुड में उनका जो है पेमेंट को लेकर अच्छा हो रहा है। और मैं ये भी बताऊं कि मुझे आज के दौर में बहुत सी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनका कद जो है बॉलीवुड के जितने हीरोज हैं उनके मुकाबले कम नहीं है, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट हो या प्रियंका चोपड़ा हो। इनका स्टारडम जो है उनके मुकाबले कम नहीं है। चाहे आप सोशल मीडिया पेजेस पे देख लीजिए, बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस राज कर रही हैं, सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं एक्ट्रेसेस के हैं। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को ये मानना चाहिए कि जब एक फिल्म हिट होती है तो उसमें हीरोइन का भी बहुत योगदान होता है। आप हाल फिलहाल की फिल्में ले लीजिए, आप बड़ी बड़ी जो हिट फिल्में हैं, ये अलग बात है कि बहुत सी फिल्में हैं जिसमें ऑफ कोर्स मानती हूँ कि मैं हीरो का योगदान है, लेकिन दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस अगर किसी फिल्म में है, आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस फिल्म में है, तो
उन एक्ट्रेसेस को लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्ट्रेसेस की वजह से भी लोग फिल्म देखने जाते हैं। तो पेमेंट की अगर बात है तो फिल्म में जो पैसा लगाते हैं उन लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि ये बड़ी एक्ट्रेस मेरी फिल्म में आती है तो इसकी वजह से भी मेरा फिल्म चलता है। तो पता नहीं ये सोच कब बदलेगा, लेकिन ये सोच बदलने की जरूरत है। और बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस है उनको अपने आपसी कैट फाइट को भूलकर इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मैं कंगना रनौत एक फिल्म कर रही है थलाईवी, जिसके लिए उन्होंने 25 करोड़ लिए हैं और वो ये बात खुलकर मान रही है कि हाँ मैंने इस फिल्म के लिए ज्यादा पैसा लिया है। और कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की जो एक्ट्रेसेस हैं, कंगना हो गई, चाहे कटरीना ने एक फिल्म को तुरंत छोड़ दिया कि भाई हीरो के मुकाबले तुम मुझे, ये लड़का मेरे सामने आया और इसके मुकाबले तुम मुझे 2 गुना पैसे कम दे रहे हो। हीरोइन को 7 या 8 करोड़ मिल रहा था और फिल्म के हीरो को 28 करोड़, कुछ इस तरह की बात थी। तो ये स्टैंड लेने की जरूरत है। और बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस वाकई में टैलेंटेड हैं। बहुत सी फिल्मों में मैंने देखा है कि एक्ट्रेसेस जो है हीरो पे भारी भी पड़ी हैं और अच्छा काम भी करती हैं, लेकिन इस नजरिए को बदलने की जरूरत है और जो हीरोइंस है उनको स्टैंड लेने की जरूरत है। और मैं मधुर जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं मधुर जी की बात कहती हूँ कि प्रियंका चोपड़ा जो है आज अगर बॉलीवुड में बहुत बड़ी एक्ट्रेस कहलाती हैं तो कहीं ना कहीं अगर उनके करियर की बेस्ट फिल्म है तो वो फैशन फिल्म है, सही बात उनको नेशनल अवार्ड मिला। कंगना रनौत जो आज बहुत धाकड़ एक्ट्रेस मानी जाती हैं, बड़े बड़े खान्स को चैलेंज करती हैं, सुल्तान फिल्म में काम करने से मना कर देती हैं, सलमान के साथ काम नहीं करना, मुझे अपनी फिल्म करनी। तो कहीं ना कहीं इन एक्ट्रेसेस को आपने कॉन्फिडेंस दिया है। और सालों से जो हम आपकी फिल्में देख रहे हैं, आपकी फिल्मों में जिस एक्ट्रेस ने काम किया ये अलग बात है कि बिल्कुल वो हीरोइन से कह सकते हैं, एक दिग्गज एक्ट्रेस आपकी फिल्मों के जरिए बनी है, चाहे वो कंगना हो या फिर प्रियंका हो। करीना कपूर की फिल्म हीरोइन भी कह सकते हैं अच्छी फिल्म थी। आपने बहुत सी एक्ट्रेसेस को चांस दिया, बहुत सी एक्ट्रेसेस को बहुत अच्छा मौका मिल गया, कुछ की फिल्में उतनी नहीं चली, लेकिन आप एक अच्छी कोशिश करते आ रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि वो कोशिश आगे कब दिखेगी और किस फिल्म में अब हमें फिर एक महिला प्रधान स्ट्रॉन्ग बड़े बजट की फिल्म लोग देखना चाहेंगे? आप तो कब नहीं, बहुत जल्दी बनाऊंगा। मेरे पास 2-3 सब्जेक्ट्स है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे दिमाग में है और मेरी बातचीत भी चालू है 2-3 एक्ट्रेस के साथ और बहुत जल्दी इसकी घोषणा करूंगा मैं। 2-3 सब्जेक्ट है, एक मिड लेवल की भी, एक बड़े बजट की है। अभी तो कोरोना के पिछले 5 महीने में तो अभी तो ऐसा रुके हुए, अभी पता नहीं क्या होने वाला, आगे जिंदगी कब होगा, शूटिंग होगा किस तरह, तो एवरीथिंग इज बिन है, लेकिन डेफिनेटली जल्दी शुरू करूंगा मैंने अपने हिसाब से। सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, एक फिल्म मेकर को जो है स्क्रिप्ट इंस्पायर करती है, सब्जेक्ट इंस्पायर करती है, कभी कभी जो है कलाकार से भी वो इंस्पायर होता है कि ये कलाकार बहुत अच्छा है, मुझे इसके साथ फिल्म करनी है। तो आज के समय में या फिर पिछले 20 सालों में कोई एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको लगा हो कि ये मेरी फिल्म की हीरोइन होती? वैसे तो बहुत है, देखिए सब अच्छी एक्ट्रेस है, ऐसा नहीं, मैंने हमेशा अच्छी एक्ट्रेस के साथ काम किया, जैसे करीना हो या रवीना हो गई, प्रियंका हो गई, कंगना हो गई, तब्बू हो गई, बहुत ही कमाल के अलग अलग है। तब्बू के साथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि तब्बू एक बहुत ही संपूर्ण कलाकार है, मैं हमेशा कहता हूँ, और बहुत ही कमाल का उनका परफॉर्मेंस। और चांदनी बात, मैं हमेशा कहता हूँ तब्बू एक ऐसी एक्ट्रेस है, मैं कहता हूँ कि तुम ना फिल्म मेकर को इतना स्पॉइल कर देती हो कि वो जो एक्सप्रेशन देती है एक ही फ्रेम में ना, आपको समझ में नहीं आता, आपको फिर आपका बेंचमार्क बहुत बढ़ जाता है, स्तर बहुत बढ़ जाता है कि कंपैरिजन का। तो मुझे लगता है तब्बू के साथ एक पिक्चर डेफिनेटली मुझे लगता है कि करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल का एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो उसके लिए भी नया हो, मेरे लिए भी नया हो। जो हमेशा हम लोग बात कर रहे हैं, पिछले 18 साल से हम बात कर रहे हैं, तो बोलती मधुर ऐसा करना चाहिए जो विच इज कॉन्ट्रास्ट टू चांदनी बार। लोग बोलना चाहिए यार ये कॉम्बिनेशन ऐसी फिल्म बनाई हम, क्योंकि चांदनी बार बहुत ही सीरियस, बहुत ही हार्ड हिटिंग सबवेसिव फिल्म थी, बहुत लोग डर गए। वो आज भी देखते तो लोग कहते हैं यार बहुत ही हार्ड हिटिंग फिल्म थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा कॉन्ट्रास्ट फिल्म करना चाहिए जो हम लोग के एकदम इमेज के अलग है। तो डेफिनेटली मैं तब्बू इज वन पर्सन विद डेफिनेटली लव टू वर्क विद। अच्छा, मैं एक सवाल और यार, एक मिनट, ये विल नैरो इट डाउन, ये इट्स विद ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, वही उसी का सवाल है कि कोई और विषय पे? क्योंकि मुझे सवाल ये है कि बॉलीवुड में जो हीरोइन की एज है ये इतनी मायने क्यों रखती है? अभी जैसे सर कह रहे तब्बू की बात कर रहे हैं, तो 40+ हीरोइन जो है, क्या जो
प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो उस फिल्म के लिए पैसा लगाएंगे? आपको लगता है कि हॉलीवुड की तरह हमारा बॉलीवुड सोचता है? देखिए, पहले नहीं था ये बात, आपने काफी सच्चाई है इसमें, लेकिन जैसे फॉरेन में तो कई एक्टर्स का करियर ही शुरू होता है 40 के बाद जी। ठीक है, एक्टरों का भी तो वैसा होता है। तो मुझे लगता है कि पिछले 5-6 सालों में जब OTT प्लेटफॉर्म आया है और एक अलग मल्टीप्लेक्स का लोग है ना, तो ये धारणा बदलती जा रही है। लोग पैसा लगाना शुरू कर रहे हैं, लोग ऐसा नहीं देख रहे एज क्या, लोग अच्छे कॉन्सेप्ट, और लोग क्योंकि आज हमारे पास एक्सेस है, हॉलीवुड की पिक्चरें भी बैठ के देखते हैं, तो हमें लगता है यार वो हीरोइन ने इतना कमाल कर, आज भी मेरिल स्ट्रीप की पिक्चर देखो, हमको देखना ही है उसकी पिक्चर, तो शी कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, तो वी वांट टू सी हर फिल्म, यू नो, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। केट ब्लैंचेट की बात करें तो परफॉर्मेंस दे दे, तो मुझे लगता है ये धारणा थोड़ी चेंज हुई है अभी, ये बात है, डेफिनेटली चेंज हुई है। लोग आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छी फिल्म देखने की है अच्छा उनकी, तो मेरे ख्याल से आगे जाके और चेंज होगा। और हमारी जो एक्ट्रेस है उनको अब जहाँ लगता है कि एक एज के बाद उनको नहीं, तो उनको डेफिनेटली आज मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली वो आर्या आई है सुष्मिता सेन वाली, बहुत ही उसकी भी तारीफ हो रही है, मैंने देखी नहीं लेकिन काफी लोगों ने उसे सराहा, पसंद किया। तो आज OTT प्लेटफॉर्म भी है परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे आपको लगता है यार कमाल का परफॉर्मेंस हो सकता है इसके अंदर, बहुत ही अच्छा एक मुझे ये मिलता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं भी उसको भी अभिनय वो भी एक्टिंग ही, वो भी लोग उसे पसंद भी करते हैं। एंड लॉट ऑफ फॉरेन एक्ट्रेसेस, देखो मैं देख रहा था अभी एक स्टेटस बोल के, इसमें केट ब्लैंचेट वाज द मेन एक्ट्रेस इन दैट, शी परफॉर्म सो ब्यूटीफुली, आई मीन इज वन ऑफ द एक्ट्रेस शी इज देयर। तो बहुत ही कमाल का मेरे ख्याल से ये परिवर्तन आया है, रिवैम्प हुआ है इंडस्ट्री पिछले 5 साल में, तो दिस इज अ गुड स्टेट फॉर गुड एक्ट्रेसेस, डेफिनेटली दिस इज अ गुड टाइम फॉर ऑल द अदर एक्टर्स आल्सो। आज मनोज बाजपेयी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। We have to come back to the topic क्योंकि मुझे messages and calls मिल रहे हैं कि let us keep the focus on it's so to talk about all these things, but let's get back to the topic. और I want to ask you and then everybody else also, आपसे शुरुआत करते हैं कि ये आइटम सॉन्ग का जो दौर है और अब तो कम लग रहा है, पर आपको क्यों लगता है कि you know, we know the commercial reasons इनको इंक्लूड किया गया, हीरोइनें भी ठीक होती, दे आर आल्सो फाइन विद इट क्योंकि उससे परफॉर्मेंसेस मिलते हैं स्टेज पे, बट देन एज अ सोसाइटी, समाज के तौर से अगर हम देखें तो छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाने गा रहे हैं कि मैं तुम तंगड़ी हूँ या पता नहीं क्या क्या गाना था वो करीना कपूर का, हु इज एन ए लिस्ट हीरोइन जो पावरफुल है, जो जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है क्योंकि शी इज फ्रॉम द फिल्मी फैमिली। तो ये क्या है, ये माइंडसेट क्या है जो कहता है कि आप ये गाने करिए अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल रीजंस? देखिए ऐसा है ना, ये आइटम सॉन्ग्स की जो आप बात कर रही, ये कोई नई बात नहीं है। मैं डेफिनेटली आपने जिसमें सवाल का आपका जवाब दूंगा कि लिरिक्स खराब हुए, डेफिनेटली ये मैं मानता हूँ, उसका स्तर बहुत ही गिरा है, लेकिन अगर हम आइटम गर्ल की बात करें, हम तो बहुत सालों से हमने देखा है कि आइटम गर्ल जैसे आइटम सॉन्ग्स तो होते थे, उस वक्त हमने अरुणा ईरानी जी को देखा, हेलन जी को देखा, बिंदु जी को देखा, अलग अलग लक्ष्मी छाया जी को हमने देखा, मेरा देश में मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, जो इतना पॉपुलर सॉन्ग है। तो ये बहुत सालों से हमारे पिक्चरों में आता जाता है। जब उस टाइम पे वैम्प किया जाता था उनको कि वैम्प का रोल कर रही है ऐसा, लेकिन वो सॉन्ग होता था। हम जितना भी देखो, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, डॉन का गाना देखो, ये आप कितनी पिक्चर हम बात करें तो ये हमेशा आता। थोड़े उसके बाद क्या हो गया कि ये जो रोल है ना, ये हमारी हीरोइनों ने शुरू कर दिया, क्योंकि आपने सही बोला कि उससे अवार्ड फंक्शंस में आपको परफॉर्मेंस मिलता है। हर आदमी कमर्शियल एस्पेक्ट देखता है बिकॉज कमर्शियल फिल्म, दे लुक इनटू द लाइट के भाई अच्छा मैं अगर ये आइटम गाना करेगी तो इसमें मुझे कितने परफॉर्मेंस मिलेंगे, 20 अवार्ड फंक्शन होते तो चलो 20 अवार्ड फंक्शन में 10 तो मेरे को मिलेंगे, अब्रॉड शो होते हैं, तो दे लुक इनटू ऑल द कमर्शियल। तो इसमें बुराई बात नहीं है। कहीं मेरे को पता है कि एक्ट्रेसेस चाहती कि भाई उनपे वो आइटम गाना या शूट हुआ जाए, ताकि आपने सही बोला कि भाई उनको पैसे मिलते हैं, उनको परफॉर्म करने से भाई हीरोइन एक मेडली बनती है उनकी, 3 गाने की मेडली बन के फिर उन्होंने प्ले जो करते हैं परफॉर्मेंस हम देखते अवार्ड फंक्शन में या कोई अब्रॉड में भी जाके, तो वो उनका ये है। अच्छा दूसरी बात ऑडियंस है, ऑडियंस को मजा आता है देखने के लिए कि भाई ये गाना है, हीरोइन डांस कर रही है, सिटी विटी बजा रहे हैं, खुश हो जाते हैं लोग, वो भी कंपल्शन है कि पीपल गेट हैप्पी टू सी कि चलो भाई अपनी हीरोइन ने अच्छा आइटम गाना, जैसे तड़का गाना भी बोलते हैं उसको, तड़का वाला गाना चाहिए कोई पिक्चर में, जैसे हमारे फिल्म की लिंगोस की बात करें तो तड़का वाला गाना लव है, आइटम गाना नहीं बोलते, तड़का वाला गाना।
तो ये चीजें बहुत सालों से होते आ रही है। ये सिर्फ अभी हीरोइन बीन डूइंग ऑल दिस थिंग। पहले एडिशनल लेते थे, अभी भी हमने देखा कहीं दूसरी पिक्चर में हीरोइन है लेकिन कोई बड़ी हीरोइन को लाया जाता है आइटम गर्ल करने के लिए, गाना गाने के लिए, डांस कराने के लिए। मार्केटिंग भी हो गई है थोड़ी बहुत, मार्केटिंग हो गई है। अभी चिकनी चमेली हमने गाना देखा, कटरीना कैफ ने किया उस पिक्चर में, हीरोइन प्रियंका चोपड़ा थी, अग्निपथ की हम बात करें तो ये होता है। एंड एक्टर्स आल्सो वांट टू डू कि भाई ठीक है हम कोई गाना करना है जिससे उनको। माय क्वेश्चन एंड मे बी मंजू जी कैन आंसर दिस इज कि मैंने इंटरव्यू पढ़ा, आई रेड एन इंटरव्यू ऑफ सुष्मिता सेन, जो उन्होंने बहुत साल पहले, अगर आपको वो उनका गाना पता है, मस्त माहौल में जीने, मस्त माहौल में जीने दे, या फिजा का तो फिजा उसके ओरिजिनल लिरिक्स में एक लाइन थी कि आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स बट इट वाज मेरे गरम सीने से, एंड शी रिफ्यूज्ड दैट. She said कि मैं I will not dance to this line, you need to change it, and she put her foot down and they went and they changed it to मेरे आंखों की नरमी से. ऐसे करके उन्होंने बदला. So my point is that it was Sushmita Sen who was okay Miss Universe थी, but it was still very early on in her career. If she very early down and say that I will not perform to a song with these lyrics, then what is stopping the bigger actresses, the more successful actresses from doing that? Manu ji, if you can please take this question. You'll have to unmute yourself. आप mute पे हैं. Is it okay now? Yes, it's fine. Thank you. What I wanted to say that basically India is a male-dominated society. So naturally, the cinemas made here are controlled by them. Men's fantasies are still, taking up these characters. Some of which are very regressive, very derogative, very derogatory towards women, and lyrics also so vulgar, so dirty. So now the time is changing because all the artists I have seen coming up from a very educated background, they are highly educated, they are sensible, they can think about their own status. Like earlier days, Sushmita was denying to act in that following those lyrics. So nowadays they know what to do and how to choose the character. You see the films like Thappar, recently I have seen. So I have seen films like Pink also. Here, the artists are so confident. Not only the characters, not only the script, it was made in a very confident way, but even the performers, they are very confident, as if it is their real life presentation. So I feel that time is changing, and we need to change the whole atmosphere, the attitude of the audience, at the same time, attitude of the makers. The filmmakers. I always tell that film is the most influential, most powerful art media, and we should be very careful. As a filmmaker, I should be very careful that so that the people do not follow the wrong things, because it can influence a society. It can change the whole political scenario of a country. Film is that powerful. You have seen in Europe how films were made and how they were portraying even the Second World War background. That in that backdrop, how many films were made, so human stories, all the stories are so human, those are so naturally made and so powerful. The impact is, even now you can feel the impact of those films. So film is meant for that. Yes, now Madhur is here, I meet him now and then. So Madhur, I am very happy with his creation, because films like fashion, films like Chandni Bar, so he for the first time, I think, because those are highly commercial films. I'm not telling these are small budget, small art house film. It is not. He has dealt in a very, I won't say he has dealt subjects in that, subdued manner, the typical art house films. But still, he had the guts to make the heroines so powerful in his treatment. So I like those kind of films. Even now, films are coming. See, you see, Secret Rockstar. It is a, small story, but how powerful it was. So it is not necessary that to, portray a woman in a proper status, you need a woman filmmaker. It is not. Even a male filmmaker can portray the characters, the nuances of a woman, what she wants, what is her,
her qualities, her whatever, her characteristic, even a male can, disclose, can portray. So I feel it is not necessary, like me, I am not a feminist, but I make films with different issues. Here it is a different scenario. I make regional language films. So it is not like Mumbai film industry. We do not rely on, glamours of heroine or heroes. We are always depending on our subjects, what we want to say. Otherwise, we won't be able to survive in the national level because our audience are very less. Now this OTT platform has come up, so we are a little bit hopeful. But for that matter also, you have to be very careful to choose your, subject, the themes, which are very relevant, which can be very powerful, and audience, we can, influence a little bit. They will sit through the film. So it is the, present scenario, I think, but again, it is changing. This web series I have been watching these days during this lockdown period, all the web series, not all, some are very good, no doubt, very powerful performance. I won't name those, but some are so, so derogatory. So, the use of, even the very popular actors, the way they are behaving in the screen, I don't support this kind of, practices. Yeah, that's why I want to ask Roona ji one question before we open it up to the audience. Roona ji, I think Manju ji has raised a very important topic. ये जैसे फिल्मों पे ज्यादातर अगर आप देखें, अगर if they even want to be provocative and use female characters for provocation, एक टेंडेंसी होती है जैसे वो सेक्सी होगा, या अभी जैसे वो कृष्ण लीला कोई आई है, मैंने देखा नहीं है, पर उसमें जैसे गोपियां और वो दैट टाइप ऑफ सेक्सुअलाइजेशन. तो ये व्हाई डू यू थिंक फ्रॉम द सिनेमैटिक, मुख्य धारा में जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं बहुत जल्दी आ जाते हैं. व्हाई आर दे फोकस्ड ऑन गॉड्स एंड गॉडेसेस लाइक दैट? लगता है आपको they feel the freedom to do things like that? I think जो मेरी समझ है, हम लोगों को बहुत आसानी से बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, विच इज हमारी जिंदगी में हमें बेसिक अधिकार दिया है सरकार की तरफ से, और वो ये कहता है कि हमें कुछ कहने की आज़ादी है जो हमारे दिल में हो, और वो हम किसी भी जरिए से कह सकते हैं, हम भाषण के जरिए कह सकते हैं, लिखने के जरिए कह सकते हैं, लेकिन हमें शायद ये कहीं बताया नहीं गया कि कहाँ जाकर रुक जाना है. हमें कहने की आज़ादी है, कुछ भी कहने की आज़ादी, लेकिन कुछ भी कहते रहने की आज़ादी नहीं है. आई थिंक वो पॉइंट जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक वो प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है. इनफैक्ट जर्नलिज्म में भी हम लोग बहुत बार बात करते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि जर्नलिज्म में जिस दिन आप समझ जाओ कि ऑन एयर जब आप लाइव जा रहे हो तो क्या नहीं कहना चाहिए, उस दिन आप लाइव पे बिल्कुल जाने के लायक हो जाते हैं, और आपको आज़ादी हर चीज़ बताने और हर इन्फॉर्मेशन देने की, लेकिन कहाँ जाकर रुक जाना है, where's that line you have to draw, that time you become the proper journalist. और हम लोगों को आई थिंक एक कैजुअल अप्रोच है हर चीज़ को लेने की, कि हाँ ठीक है, हम चलता है, ये जो चलता है ये कहीं कहीं नहीं भी चलता है, तो वो जब तक कोई बताएगा नहीं कि ये नहीं चलता है. लाइक एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. हम लोगों के फ्रेंड्स में, स्पेशली मेन में, मेरे हस्बैंड बताते हैं कि बहुत बार जोक्स आते हैं, हाँ बीवी का नौकर बीवी को ये करके रखा है, बीवी को ऐसे बता दिया है कि वो इस घर में या किसी के घर में ऐसे पंजा गड़ाकर बैठी हुई है. ये नहीं चलता है, वो पंजा गड़ाकर नहीं बैठी, वो पूरा घर चला रही है. तो उसके अगर आपकी इज्जत करना है तो उसकी बेइज्जती ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है. तो वो जो नहीं करने वाली लाइन है ना, वो अभी तक खींची नहीं गई है. सो जब वो खींच दी जाएगी तो शायद लोगों को समझ में आएगा. और सेंट्रल बोर्ड CBFC इज देयर, लेकिन CBFC हर जगह हर लोगों की थॉट प्रोसेस में नहीं जाएगा. सो वो जो थॉट प्रोसेस, उसको कहीं ना कहीं हैमर करने की जरूरत है कि ये नहीं चलता है. और ये बहुत क्लियरली बोलती हूँ, ये घर और ये दोस्तों के साथ ही हो सकता है. जिस दिन कोई ये कहे कि क्या लड़का हो गया लड़की जैसा रो रहा है, वहां पर आपको रोकना पड़ेगा कि मैं लड़की हूँ, मैं नहीं रोई, आपसे बात कर रही हूँ, तमीज से बात कर रही हूँ, मैं रोते हुए बात नहीं कर रही हूँ. तो आप उसके दिमाग में ये क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं कि लड़कियां रोती हैं, या फिर ये क्यों बताते हैं कि ये जो होता है ना लड़कियों के साथ, तो लड़कियों को थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ता है जब भी शादी होके जाती है. आपको वो थॉट प्रोसेस को वही फुल पड़ेगा. और फिर वो आगे जाके जब बात होगी कि हम हमारे धर्म या फिर हमारे
लेटर जिस दिन वो पहला नो बोलना सीख जाएंगे, वो लास्ट तक उस नो को ध्यान रखा जाएगा. आई थिंक दिस इज व्हाट आई कुड से अबाउट इट. मैं सुन नहीं पा रही हूँ. हेलो, जी जी जी, अब कुछ सवाल आए हैं तो वो सवाल पूछ लेते हैं. लेट्स आस्क द क्वेश्चंस. अरुण जी. Can I ask a question? हाँ जी प्लीज. Myself, Dr. Khushbu Gupta. I'm assistant professor at Delhi University. My question is, first of all, I would like to thanks to all of you. सभी लोग यहाँ पर हैं और बहुत अच्छे से इस टॉपिक को जो है डिस्कस कर रहे हैं, इशू को डिस्कस कर रहे हैं. और थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर कि ऐसे टॉपिक पर वो वेबिनार करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. एटलीस्ट इस समय, जिस समय की बहुत सारे वेब सीरीज, बहुत सारे फिल्में जो है बहुत ज़्यादा बर्निंग इशू है आज की डेट में. जैसे कि मंजू मैम ने जो है डिस्कस किया, बट उन्होंने नाम नहीं लेना चाहा वेब सीरीज का या फिर एक्ट्रेस का. और मधु भंडारकर जी ने बोला कि जो फिल्में वो बनाते हैं वो विमेन सेंट्रिक होती हैं. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आज के दौर में विमेन को इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड और इतना ज़्यादा सेक्सुअलाइज क्यों किया जा रहा है? फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग कि कुछ ऐसे वेब सीरीज और मूवी, जैसे कि अभी डिस्कशन में भी बहुत लोगों ने बताया कि बहुत क्या मैम ने बोला कि कृष्णा एंड हिज लीला. तो ऐसे जो वेब सीरीज है उसमें हिंदू गॉडेस को जो है, देवी देवताओं के नाम पर जो है उनका एक्टर को बुलाना या कहना, ये कहाँ तक सही है? तीसरा कि we will take the पाताल लोक में क्या दिखाया गया है कि हाँ दो समुदायों को एक्चुअल में एक दूसरे के अगेंस्ट करने का काम किया गया है. जो सरकार है उसके प्रति, शासन व्यवस्था के प्रति जो है अविश्वास फैलाने का कार्य किया जा रहा है. वो कितना हद तक सही है? क्या कलाकारों की, क्या कथाकारों की, क्या फिल्म निर्माताओं की ये दायित्व नहीं होता कि नेशन बिल्डिंग की तरफ, टुवर्ड्स द नेशनल यूनिटी, उनका कोई दायित्व नहीं होता है? क्या सिर्फ ये एक मुनाफा ही रह गया है? क्या हमारा समाज इन सब विषय वस्तु के लिए क्या तैयार हुआ है जो अभी दिखाया जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या फिर अदर ऐसे फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है? मेरा बस क्वेश्चन मधु भंडारकर सर से है, क्योंकि इनका मैंने बहुत सारी मूवीज मैंने देखी है जो विमेन सेंट्रिक रही है, और मैं चाहती हूँ कि इन सब विषयों पर आप सभी फिल्म निर्माता और कलाकार जो है, जो इस जगत से जुड़े हुए, क्यों नहीं हम नेशन बिल्डिंग की तरफ ऐसा कोई कार्य करें? क्यों नहीं हम, जैसे अभी मैम ने बताया कि सुष्मिता सेन जी ने पर्टिकुलर एक सीन को, एक डायलॉग को लेकर उन्होंने, सॉरी लिरिक्स को लेकर, हाँ लिरिक्स को लेकर उन्होंने जो अपोज किया कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ. तो ऐसे क्यों नहीं है कि हमारे एक्टर और एक्ट्रेस जो है, जो चीजें किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत पहुंचा रहा है, या फिर जो कि हमारा समाज जो है वो तैयार नहीं है. रसभरी में आप देख लीजिए, मैं खुलकर नाम लेना चाहूंगी कि एक छोटी सी बच्ची को जो ऑब्जेक्टिफाइड किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या वो उसका सेक्सुअलाइजेशन जो किया जा रहा है, क्या वो सही है? क्या एक शिक्षिका जो कि स्कूल में पढ़ा रही है, उसका और स्टूडेंट के बीच का जो संबंध दिखाया गया, क्या हमारा समाज उसके लिए तैयार है? हम महिलाएं जो कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनकी इमेज जो है वो खराब होती है, उनकी छवि खराब करने का कार्य किया जा रहा है. ऐसा ये बहुत गंभीर विषय है जो कि हम सभी को उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है इस पर जो है कार्य करें, जो कि मुझे लगता है कि इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी देखा था जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है सभी फिल्म जगत के दिग्गज लोगों को जो है इन्विटेशन पे बुलाया था. तो वहां पर ये कहा गया था कि हमारा जो सिनेमा है, या कलाकार है, कथाकार है, निर्देशक है, इन सब का जो है कार्य भी, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है नेशन बिल्डिंग में. व्हाई नॉट? क्यों हम नहीं तैयार हो रहे हैं? क्यों सिर्फ हम मुनाफा कमाने के लिए, या सिर्फ इसलिए हम करते हैं कि हाँ ठीक है हम रख दे रहे हैं, ये चल जाएगा, या ये दर्शकों को पसंद आएगा और हमारी मूवी खूब चलेगी? नहीं, ये ऐसा नहीं है. हमारा समाज ऐसा इसके लिए तैयार नहीं है. और किसी एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष के लिए इस तरीके की जी सवाल आपका मिल गया.
मधुर जी से सवाल था, और कोई और भी अगर इसका जवाब देना चाहता है तो दीजिएगा। मधुर जी, अच्छा लगा। हाँ, मैं देखिए ऐसा है ना कि जैसे आपने कहा कि कुछ सीरीज इस तरह की बन रही है जहाँ पे हमारे कल्चर को या हमारी सभ्यता को लेकर गलत दिखाया जा रहा है। देखिए मैंने अपनी फिल्मों में कभी इस तरह की चीजें की नहीं। अभी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसका सेंसर नहीं है इस पे। जैसे हमको आज हम जो भी पिक्चर सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि सेंसर क्या होगा, सेंसर में किस तरह होगा, कोई किसी को हम हर्ट नहीं करे, कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं करे। तो अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ आया नहीं है जहाँ पे सेंसर हो रहा है, तो एक फ्री फ्लो चल रहा है, लोग अपने हिसाब से बना रहे। तो ये फिल्म मेकर ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन क्यों किया। और जो सीरीज है इसमें से बड़े बड़े नाम जुड़े हुए, कोई ऐसे नए लोग नहीं है इसमें, तो ये वो ज्यादा उत्तर दे पाएंगे कि ऐसा उन क्यों कर रहे हैं या उनका क्या मकसद है। या पिक्चर मैंने देखी नहीं है, पिक्चर जो आपने मेंशन की है या सीरीज की बात करें, ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने देखी नहीं, तो मैं कुछ जी मधुर जी, मोर स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछें कि ये मानसिकता क्या है, क्योंकि देखिए सेल्फ रेगुलेशन भी कोई चीज होती है, ठीक है सेंसर नहीं है ओटीपी का। करेक्ट है, बहुत सही बोला आपने। बहुत जो ऐसी चीजों पे फोकस करती है, एक तो प्रोवोकेटिव होता है, तो हो सकता है कि हाँ अगर आपकी छोटी फिल्म है, यू वांट टू प्रोवोक, यू वांट टू बी इन द न्यूज, तो आप ऐसा टाइटल सेक्सी दुर्गा टाइप रख लीजिए और फिर कहानी फिर सब अटेंशन देंगे। पर ये मानसिकता है क्या, अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल रीजंस फॉर डूइंग इट, क्यों होता है ऐसे? I really don't know because see I have not seen it, Advita. I cannot say right now. I cannot what exactly has happened. I don't know, but I agree with you. There's a trail of it कि काफी टाइम से इस तरह से चीजें चल रही है जहाँ पे इस तरह का कल्चर पे अटैक या उस तरह का किसी एक कम्युनिटी के पीछे उनके बाना को ठेस पहुंचाना, ये डेफिनेटली हुआ है। और जैसे आपने कहा, सही कहा कि सेल्फ सेंसरशिप होना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से बहुत पहले भी 6-8 महीने पहले ये बात गई थी इंडस्ट्री में भी कि भाई आप अपने आप को रेगुलेट कर लो या अपने आप को इसको अपने हिसाब से आप इसको रिस्ट्रेन कर लो ताकि इस पे ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी मेरे ख्याल से बात पहुंची नहीं है, या आई डोंट नो व्हाट इज द थिंग कि दे हैव नॉट अमेंडमेंट किया नहीं उन्होंने इस चीज को, सेल्फ रेगुलेशन, जो मेरे ख्याल से करना चाहिए। क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी सेंटिमेंट्स, किसी भी कोई भी प्रांत हो, कोई भी जात धर्म का हो, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। और मंजू जी आप क्या कहना चाहती हैं इस पे, ये सवाल पे? आप जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। What I feel, it is an universal fact. Can you hear me? Yes. It is an universal fact that all forbidden things are good, you know, enjoyable, most enjoyable. सारे निषिद्ध जो है ना, वो कुछ most enjoyable है. And I have noticed in some of the film festivals, when you watch a film without censor, all the crowd, you know, all the audience enjoy it so much, because when they see something restricted, which is forbidden, now when you see it in a bigger, I mean, with a bigger crowd, you get that pleasure, not that whatever pleasure, more. So this is the thing. So these kind of things actually nowadays, CRP bolo, channel mein ya, you know, koi commercial this thing intention bolo. So nowadays this is a fashion that you watch all these things in such a naked manner. In most, they say it is realistic, but few things should have, I mean, this since it is an art medium, so it should have some aesthetics. I believe in aesthetics in films and serials, but these people, I think, because of maybe commercial gain and because of the pleasure, ना forbidden things का जो pleasure मिलते हैं ज़्यादा, इसके लिए इसका जो mindset है, इसका जो attitude है, they want to indulge on these things which are actually not necessary all the time. जी, thank you so much. और कृष्ण जी ने एक और सवाल भेजा है. He has asked, objectification is not always based on sex or body, but have been not also objectified based on color as well, making color as hallmark of beauty. ये जो stereotyping भी होती है in terms of women, जैसे मुझे याद है नीतू जी आप उन्होंने वो साइज 0 का दौर शुरू किया, तो सब जगह पे लोग साइज 0, और इसकी वजह से इतनी यंग गर्ल्स, महिलाएं, बच्चियां को इतना कॉम्प्लेक्स हो गया अबाउट वेट इश्यूज.
और जो ठीक वेट की भी थी वो भी सोच रही थी कि मुझे तो साइज 0 होना चाहिए। उस समय जिम में सब वैसे ही पहुंच रहे थे। तो ये दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स, या अगर आप फेयर स्किन हो तो सुंदर हो, और महिलाओं को द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी जो इस्टेब्लिश करते हैं, तो कहते हैं कि आपको इस तरह दिखना चाहिए, ये फिगर होना चाहिए, ये भी बहुत ही आपत्तिजनक है। आप मुझसे पूछ रही हैं सवाल? जी जी जी। देखिए, मुझे लगता है कि खूबसूरती में कोई बुराई नहीं है। किसी भी चीज को आप जितना, चाहे वो हीरो ही क्यों ना हो। अभी वॉर फिल्म आई थी, ऋतिक रोशन बहुत हैंडसम लग रहे थे, तो खूबसूरती देखना हर किसी को अच्छा लगता है। और अगर साइज 0 है, अगर फिटनेस की बात है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, अगर लड़कियां करीना कपूर की तरह साइज 0 चाहती हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो है आपको फिट होने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो साइज 0 तो अनहेल्दी एंड अनरियलिस्टिक है ना। साइज 0 अनहेल्दी नहीं, देखिए वो एक टर्म था, लेकिन ये है कि आप फिट रहे। साइज 0 मुझे नहीं लगता है कि वो अनहेल्दी चीज था। उन्होंने पावर योगा किया था, जिसके जरिए उन्होंने अपने आप को करीना कपूर की गिनती जो है इससे पहले बल्कि एक्ट्रेसेस में होती थी, लेकिन टशन फिल्म के बाद उन्होंने अपने आप को फिट किया, और प्रेगनेंसी के बाद भी कह सकते हैं अभी वो माँ बनी थी, और उन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को फिट किया। तो फिटनेस एक अच्छी चीज है। जब आप कहीं जाते हैं बाहर घूमने, जब आप विदेश के लोगों को देखते हैं, तो वाकई वो सब बहुत फिट होते हैं। तो फिटनेस को लेकर अगर बॉलीवुड आपको जज करता है, आपको बॉलीवुड अगर कहता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस अगर फिटनेस गोल दे रही हैं आपको, तो ये एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों में इंडिया में फिटनेस को लेकर लोग बहुत अलर्ट हुए हैं। सोशल मीडिया पे ये एक्ट्रेसेस अपने फिटनेस के वीडियोस शेयर करती हैं, तस्वीरें शेयर करती हैं, और वो जो है हमारे देश की आम महिलाओं को इंस्पायर करती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सही है। हाँ, जी, आपका ख्याल है, आपको क्या लगता है साइज 0 वेरी अगेंस्ट द साइज 0 कॉन्सेप्ट? और फैशन इंडस्ट्री हो, ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री हो, उन्होंने बहुत एक्शन भी लिया है टू ब्रिंग इन हेल्थियर लुकिंग पीपल। और आपको क्या लगता है ये स्टैंडर्ड तो महिलाओं के लिए ग्लैमर वर्ल्ड से आता है? कि आप महिलाओं को ग्लैमर वर्ल्ड से अलग नहीं कर सकते हैं। किसी जनरेशन को ये नहीं कह सकते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि हर जनरेशन अपनी थॉट प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ रही है। अगर उसे लग रहा है करीना कपूर जैसा बनना है तो उसे बनना है। एक बार इंटरव्यू चल रहा था बच्चन साहब से, उनसे मैं बात कर रही थी, तो इनफैक्ट हम लोग थे कुछ, और सोशल मीडिया के बारे में ही बात हुई कि कहीं अच्छा भी होता है, कहीं बुरा भी होता है। दैट टाइम ही सर, ये दो-धारी तलवार है, जहां जिस तरीके से यूज करेंगे वहां उस तरीके से ये यूज होगी। अगर कोई चीज अच्छी हो रही है कि सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उसका दूसरा स्वरूप भी स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया अभी पिछले कुछ सालों में आया है, तो उसको मैच्योरिटी लेवल में पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक जनरेशन चेंज हो चुकी होगी। सो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस चीज को लेना चाहते हैं। फिटनेस, व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आप ग्लैमर नहीं हटा सकते हैं, लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम आप ये अगर वीडियो चल रहा है कि उसके जैसा बनना है, तो उसके दूसरे वीडियो भी तो चलाए जा सकते हैं कि ऐसा बनने के लिए पीछे मत पड़ जाइए, क्योंकि इंडियन फिगर कभी साइज 0 हो ही नहीं सकती है इंडियन। तो बस हाँ, लेकिन फिटनेस तो आ ही सकती है ना। और फिटनेस अगर हम लोगों के एक इंडियन मेंटालिटी में देखा भी जाए, तो इट वाज नेवर लाइक श्रिंक लेडी। वो शायद बिफोर बिकमिंग मदर पॉसिबल तब भी हो जाता था, लेकिन हमारी इतनी मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ रही हैं, वो कभी भी साइज 0 नहीं रही। लेकिन हाँ, काम करने की क्षमता हमसे ज्यादा रही है, पता नहीं कहाँ से लाती थी। सो ये तो पार्ट एंड पार्सल है। It's better to tell the new generation कि this is also one video. Why don't you watch while watching the size 0 video, watch this video also. Possibly you will be able to judge. And then share. बिल्कुल. And as we are moving more towards Instagram and instant celebrity, घर पे बैठे बैठे क्या हो रहा है कि ये ज्यादा हाईलाइट भी हो रहा है, and you are getting all kinds of diseases. ये body dysmorphia disease जो है, वो आज हमारे लाइफस्टाइल, हमारे दौर की डिजीज है, पहले होती नहीं थी, और बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है इससे। और निशान जी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको मधुर जी के लिए एक सवाल है, तो निशान जी आप पूछिए अपना सवाल।
नमस्कार सभी को। शायद मधुर जी चले गए हैं। मैं कोई हूँ, भी अच्छा वो सॉरी, फ्रोजन है तो लग रहा है कि नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं। सर मेरा सवाल आजकल जो युवाओं में कह ले कि जो सिगरेट का या वीड का कंजप्शन को लेकर के फैशन है, स्पेशली इन गर्ल्स, मैं मोरल पॉलिसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि सबको अपना अधिकार है, हर कोई जब एडल्ट हो जाता है तो वो क्या करे नहीं करे वो उसका पर्सनल चॉइस है। लेकिन एक सिनेमा के माध्यम से जो पहले हम देखा करते थे, कुछ अशोक कुमार जी को या कुछ एक्टर को छोड़ दिया जाए तो सिगरेट कंजप्शन हुआ, अल्कोहल हुआ, वीड हुआ, एक निगेटिव कैरेक्टर का वो होता था, सिंबल होता था। आज रिसेंट के फिल्मों में अगर हम देखें तो वीड कल्चर को जिस तरीके से प्रमोट किया गया है फिल्मों के माध्यम से, ओटीटी के माध्यम से, मैं स्पेशली सिर्फ अभी वीड की बात कर रहा हूं, मैं सिगरेट और दारू की बात नहीं कर रहा हूं, और खास करके वो लड़कियों को करता हुआ दिखाते हुए जहाँ पे पुरुष कम करते हैं, महिलाएं ज्यादा कर रही है, और उनका बार में जाना, ड्रिंक करना, वीड करना, ये एक फैशन बन गया है कि अब अगर आप मॉडर्न हैं, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो आप ये करते हैं। इस सिस्टम को जो शुरुआत हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब और क्या ये हमारे समाज के लिए सही? अभी एक रिसेंट सर्वे था दिल्ली का ही, जहां पे वीड में शायद वो सेकंड नंबर पे अक्रॉस द ग्लोब, सेकंड नंबर पे वीड कंजप्शन में दिल्ली आई है। अगर अक्रॉस द ग्लोब नहीं होगा तो इंडिया में तो होगा ही होगा। तो उसमें यूथ है बहुत ज्यादा और उसमें गर्ल्स का रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए डेफिनेटली ये तो गलत है, और मेरे ख्याल से ये, मुझे नहीं लगता ये फिल्म्स के अलावा एक फिल्म्स एक माध्यम हो सकता है। फिल्म में मैंने बहुत कम फिल्मों में देखा जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैंने ओटीटी प्लेटफॉर्म में, जैसे मैंने कहा, मैं ज्यादा हिंदी मैं सिनेमा की बात नहीं, सिनेमा में तो हम अगर बात करें तो मैंने पुराने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर से हम देखते थे, अशोक कुमार जी है या राज कपूर जी है, देवानंद साहब है, दिलीप कुमार साहब है, सब सिगरेट पीते थे, हमने इतने सालों से देखा हुआ है। राजकुमार साहब, मैंने उनको साइड कर दिया। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं ये पुराने पिक्चर में अभी तो हम दिखा सकते, अभी तो उल्टा कम करते हैं क्योंकि स्क्रीन के नीचे आ जाता है सिगरेट स्मोकिंग इंजरीज टू हेल्थ, जो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करता है, तो वो चक्कर है। तो मुझे लगता है कि, और वीड का तो मुझे नहीं लगता, मैंने कम एक दो पिक्चर में देखा होगा ऐसा वीड कोई करता बोल के, लेकिन ऐसा फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन एक चीज है, उसको फिल्म इंडस्ट्री वालों को नहीं बोल सकते। ये आज की तारीख में देखिए, फिल्म ही एक माध्यम नहीं है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, जो आपको देखना है वो ऐसी चीजें हैं। देखिए हम बच्चे थे तो हमको कोई समझ में नहीं आता था, किताब में तो हम पड़ोसी में जाते थे, कोई वहां चाचा होता था, अंकल होता था, मामा होता था, उनसे पूछते थे सर इसका जवाब क्या है। आज तो हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आते, वो तो गूगल करके पूछ लेते हैं कि इसका जवाब क्या है कुछ चीज के लिए। तो ऐसा हो गया आज की तारीख में कि दो डेज आर गॉन। आज छोटा मोबाइल है, वो आदमी वो देखता है किसी, आज मैं बताता हूँ, एक 16-17 साल का युवा, मैं कोई कॉलेज में गया था, मैंने उसने मेरा विकिपीडिया ऐसा पढ़ा जैसे वो मेरे को बहुत सालों से जानता है, कि वो 1 मिनट में मेरे को पता नहीं लगा। उसको जब पता चला मैं आने वाला तो उसने सब मेरे बारे में रिसर्च किया था। तो ये वो एक जिज्ञासा खत्म हो गई। और दूसरी बात ये जो है ना, जब कह रहे कि वीड का है, ये वीड फिल्म में मैंने बहुत ही कम देखा फिल्म में। और फिल्म में देखिए, याद रखिए, हिंदी सिनेमा का हमेशा होता है, अगर वो ड्रग एडिक्ट है, अगर वो क्रिमिनल है, अगर कुछ भी चीज करता है, हमने उसको ग्लोरीफाई करने का हमने दिखाया कि उसका बुराई होता है, उसका हम लोग एंड में हमेशा दिखाते कि इसका बुराई होता है, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के। हमने उसको जस्टिफिकेशन नहीं दिया, बहुत अच्छा भैया तू ये करते रहे, इससे तेरी मर्डर करके तू ये बन जा, ऐसे नहीं होता। हमने दिखा दिया इसका नतीजा खराब है कोई भी चीज के लिए। तो मेरे ख्याल से फिल्म को दोष देना गलत है कि फिल्म को आप बोले कि फिल्म में दिखा दे तो मैंने कहा, ऐसी कई चीजें होती है लाइफ में जब हम लोग को लगता है यार ये ऐसा हो सकता है। मुझे बताओ, कभी ऐसा हमने सोचा कोई फिल्म में, मैंने तो हॉलीवुड फिल्में भी नहीं देखा कि प्लेन लेके आप एक टावर को उड़ा देते हो, ये मैंने कभी फिल्म में देखा नहीं है, लेकिन तो रियल लाइफ में हुआ है। कभी हमने देखा कि बॉम्बे में इतने बॉम्ब ब्लास्ट हुए एक साथ, तो मैंने कोई फिल्म में देखा नहीं, लेकिन ये हकीकत हुआ है। ये तो फिल्म के ऊपर है, ये तो कई चीजें ऐसी होती है। तो मेरे ख्याल से कई चीजें होती है। आज की तारीख में इंटरनेट की वजह से ही लोगों को अवेयरनेस आ गया, लोग तरह तरह की चीजें बैठ के गूगल करके देखते रहते, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या, हर चीज आपको मिलता है। तो ये ओवरऑल हम लोग को एक इंट्रोस्पेक्शन खुद को करना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा, और अपने माँ बाप को, अपने भाई को, अपनी बहन को, हम सबको बताना पड़ेगा भैया क्या आप कर रहे हो, क्या देख रहे हो। जैसे हम कहते हैं आप मोबाइल चेक कीजिए बच्चों का कि क्या देख रहे हैं, क्या इंटरनेट चेक कीजिए, हमेशा कहते हैं,
हमेशा कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये कूल होता है, लड़कियां पीती है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको वो देखना पड़ेगा किस संगत में जाती है, कि ऐसा नहीं कि पिक्चर देख के, अभी मैं अगर हमारे टाइम पे हम ब्रूस ली की पिक्चर देख के हम आके कंफू कराटे तो नहीं करते थे बाहर आके, कि भाई हमने ब्रूस ली की पिक्चर देखी कि मेरे को भी कराटे सीखना है, ऐसा नहीं होता था ना। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आप माहौल में है, किसके साथ बैठे हो, कहाँ पे आप सीख रहे हो, और आपको इसके एक्सेस कहाँ से, ये हमको देखना पड़ेगा खुद को कि पूरी। हाँ, I disagree with you, क्योंकि Yeah. आप कह रहे हैं कि लड़कियां जो ड्रिंक करती हैं वो गलत है, तो why this मैंने गलत नहीं बोला, मैंने वीड की बात किया, मैंने ड्रिंक की बात नहीं किया। आपने अभी कहा। नहीं, मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, मैंने वीड की बात कर रहा हूँ। वीड है तो युवा पीढ़ी कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, ड्रिंक की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कहा मैं ड्रिंक की बात। मैंने मेरे पिक्चर में दिखाया ड्रिंक पी रही है, मैंने तो ड्रग्स भी दिखाया है। I think balance is important. समाज बदल भी रहा है, हाँ। इसमें चीजें बदलाव आएगा। तो ये नहीं है कि आप जो लोगों को सिखाइए। देखिए, I don't think entertainment has the job to educate people, but ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ, अगर कुछ चीज इलीगल है या गलत है तो हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूँ। I would want to make a point. हाँ, just 1 minute, रूना। अगर वो लीगल है तो उसमें I think it's a lifestyle choice. You may approve of it. Yeah. But that's it, that's the character. तो I don't think. अरे मुझे अद्विता जी, मुझे हमेशा इल्जाम होता है कि मधुर भंडारकर अपनी सब हीरोइन को सिगरेट पिलाता है हर पिक्चर में। माने उसमें कॉर्पोरेट से लेकर पेस्ट्री से लेकर फैशन से, हीरोइन में तो लोगों ने गिने कितने बार सिगरेट पिलाया है उसने हीरोइन को, शायद शराब पिलाई है। तो मैं खुद व्यक्ति पर्सनल तौर पे आई डोंट स्मोक एट ऑल, आई रियली डोंट वांट टू स्मोक, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मुझे लगता है कि पिक्चर के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है, कुछ चीज में ड्रामेटिक चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू से, हम दिखाने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको दिखाते, हमने ये टाइम तो हीरोइन के टाइम में डाला था कि हानिकारक है या इसको आप स्मोक मत कीजिए, हम तो हर चीज को इसका बताते भी, उसका असर भी दिखाते क्या होता है, इसकी रिपरकशन भी दिखाते हैं। जी, रूना जी, आपको कुछ कहना था? नहीं, मेरा इनफैक्ट आई विल सपोर्ट मधुर जी। आप हर चीज के लिए, अब नॉट से हर चीज, लेकिन बहुत सारी चीजों का आप जो जिम्मेदारी है वो फिल्म वालों के ऊपर दे देते हैं, और ये पहला शख्स नहीं है या फिर ये पहली बात नहीं है, ये इसके पहले भी होता रहा है। हाँ। लेकिन बीड़ियां पी जाती हैं, इसके अलावा बहुत बार वो एक, मुझे नहीं मालूम, नाक में कुछ लगाया जाता था। मेरे यहाँ एक बहुत नैनी टाइप सी एक लेडी आया करती मेरे बचपन में, शी यूज्ड टू पुट नस्वार, शायद उससे बोलते हैं। सो वो हमारे यहाँ रहा है, लेकिन आई थिंक वो कल्चर जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया है बिकॉज ऑफ मे बी इंटरनेट की वजह से, बहुत सारी फिल्मों की वजह से, इसलिए वीड हैज बिकम अ फैशन। मेरे सर्कल में मैंने किसी को ड्रग करते हुए नहीं देखा था। आई एम फ्रॉम अ बी टाउन काइंड ऑफ सिटी, मैंने नहीं देखा था, या मेरे जो जाने पहचाने वाले में से थे, मैंने नहीं देखा है। और फिल्मों की वजह से वो इम्पैक्ट पड़ रहा हो और उसकी वजह से वो सिगरेट पी रहे हैं, वो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। ये कहीं हम लोगों के बीच में से ही उठकर आती है, वो चीज आपके घर में होती है। अगर आप मेंटालिटी वाइज सोचें तो एक आपका यस लिस्ट होती है और एक नो लिस्ट होती है। तो जब आपके घर में कोई सिगरेट पी रहा होता है तो सिगरेट पीना आपकी यस लिस्ट में चला जाता है। तो जब आप बड़े होते हैं तो आपकी यस लिस्ट में हाँ सिगरेट पीते हैं, और महिलाएं सिगरेट पीती थी, और फ्रैंकली स्पीकिंग मुंबई में मैंने बहुत ज्यादा देखी है। मैं नहीं पीती, मैं सहन भी नहीं कर पाती हूँ, और जो पीते हैं मैं उनको मना भी नहीं करती, उनका ये हमारे बीच में होता है। इसलिए फिल्म को वीड कल्चर बढ़ा रहा है, ये मुझे सीधी नहीं सही लगा है। हो सकता है आपको ऐसा कुछ अंदाजा लगा हो, तो एक्सपीरियंसेस कभी गलत नहीं होते हैं। नहीं, बिल्कुल। पहाड़ में जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ तो महिलाएं बीड़ी पीती हैं और सालों से पीती हैं, और बहुत पीते हुए, खेतों में एंड यू विल फाइंड मेन बुनते हैं, वो स्वेटर बनाते हैं पुरुष तो, और पहाड़ का कल्चर तो काफी महिला प्रधान है। एक और सवाल आया है फेसबुक से, और ये दीक्षा पांडे पूछ रही है मधुर जी से, why is it seen that most of the heroines are selective about raising voice against particular issues? What is the mindset behind this hypocrisy? मधुर जी, आपसे सवाल है। देखिए मैं कैसे बोल सकता हूँ, ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, वो किसी इश्यू पे बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे देश में, कभी कभी जिसे हम कहते हैं, आप भी जानते हैं, सिलेक्टिव एक्टिविज्म कहते हैं उसको। कभी कभी कुछ मुद्दे पे वो बोलते हैं, कभी कभी किस मुद्दे पे नहीं बोलते। जब उनको सूट करता है वो बोलते हैं, जब उनको सूट करता नहीं बोलते। ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है।
उनको ऐसा लगता है कि भाई इसके ऊपर नहीं बोलना है। मुझे आप बताइए अद्विता जी, आपको पता है जब अपना हिंदू सरकार पे इतने कंट्रोवर्सी हुई थी तो कौन से इंडस्ट्री के लोग आके मेरे सपोर्ट में खड़े रहे? मैंने हमेशा, चाहे वो ऐ दिल मुश्किल हो या पद्मावत हो या उड़ता पंजाब हो, मैंने हमेशा कहा कि पिक्चर रिलीज होनी चाहिए, सपोर्ट किया, लेकिन मेरे टाइम पे कोई नहीं आया। तो ये है, Did you feel foolish कि आपने लोगों के लिए आप गए पर आपके लिए कोई सामने नहीं आया? नहीं, I didn't get foolish. पता नहीं, तो एक बारी होटल में हाँ, 5 स्टार होटल में, मैंने कहा ना, मैं और मेरी एक्ट्रेस कीर्ति कुलारी, हम लोग का पूरा यूनिट था, वहां पे आके बात किया। नागपुर में हम लोग को प्रॉब्लम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने नहीं दिया। तो लेकिन ये देखिए, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि कोई आता नहीं, कोई बात नहीं करता है। अभी लोग को ऐसा लगता है भाई पॉलिटिकल है, या हम इसमें क्यों गिरे, हमको क्या लेना देना, कल हमारी पिक्चर पे गाज आ जाएगी, या हम हमारी रिलेशन क्यों खराब करें। सबके अलग अलग गणित है, सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। तो जिसने सवाल पूछे उनका ये कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं आपने इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोला, इस मुद्दे पे बोला। जैसे हमने कहा बीच में कि 2 साधु की हत्या जो हुई महाराष्ट्र में, उस पर तो किसी ने, इंडस्ट्री वालों ने नहीं बोला। तो कहाँ थे वो लोग? तो हमने चाहे अखलाक हो चाहे फिलू खान हो, हमने उसकी निंदा की कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब महाराष्ट्र में 2 साधु लोग की हत्या हो जाती है, तभी तो चुप बैठे इंडस्ट्री। तो अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। ये तो सिलेक्टिव है। मैंने हमेशा कहा कि उनको जब सूट करता है बोलते, जब नहीं होता है नहीं बोलते। सिलेक्टिव ही नहीं, कम्युनल भी है ना, क्योंकि आपको खाली एक तरह का की नाइंसाफी दिखती है। सो इट इज आल्सो कम्युनल। I don't know because the communal no, but I think they choose to not do the other way. It is they choose to look other way. They don't want to comment on it, or like I said, it doesn't suit their narrative maybe. ठीक है, हाँ जी मैं बोलना चाहूंगी कि जो 2 साधुओं की हत्या हुई, ये एक बहुत सही बात है कि अमेरिका में एक ब्लैक पर्सन की जो पुलिस ब्रूटैलिटी का शिकार हुआ, बॉलीवुड की हर हस्ती ने उसकी निंदा की। और जब कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेसेस, कुछ लोगों ने उसकी निंदा की कि भाई लिंचिंग हुई 2 साधुओं के साथ, और वो गलत है। लेकिन ये एक सच है कि बॉलीवुड जो है उसने अपने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि उसको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और ये जो आरोप लगते आए हैं बॉलीवुड पे कि वो एक पर्टिकुलर कुछ अलग एजेंडे पे लोग वहां चलते हैं, तो ये एक सच्चाई है वहां। आपको क्यों लगता है नीतू जी, आपने इतना डील किया है बॉलीवुड के साथ, और आई एम श्योर हाँ, मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप्स भी होंगे बहुत लोगों के साथ, तो क्या लगता है आपको, क्या कोई प्रेशर है उन पे कि एक आप पाथ पे या एक विचारधारा के साथ आप चलिए, और अगर आप वहां से भटके तो आपको काम नहीं मिलेगा? क्योंकि अनुपम खेर जी ने तो कहा है कि ये सब प्रेशर्स आते हैं लोगों पे। प्रियंका चोपड़ा खुद निकली हॉलीवुड, शी इज मेड अ सक्सेस ऑफ हरसेल्फ, but we all know कि she had to go and look for work elsewhere. तो आपको क्या लगता है कि क्यों ये लोग एक विचारधारा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक ना ये सोच है लोगों की कि साधुओं के सपोर्ट में क्यों बोले, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक दूर 7 समंदर एक ब्लैक पर्सन के साथ ब्रूटैलिटी हुई, तो वहां पे मैंने देखा है कि लोगों को लगता है कि नहीं, ये थोड़ा अपमार्केट चीज है, मुझे इसमें आना चाहिए। और साधुओं के बारे में अगर बॉलीवुड के एक्टर बोलेंगे तो लोग उनकी, आप समझ सकती, लोग अपने आप को बॉलीवुड जो है वो एक अलग स्टैंडर्ड सेट करके रखना चाहता है कि हाँ, मुझे कहाँ बोलना है, और ऐसे बोलना है कि मेरा जो एक स्टेटस है उससे मेरे स्टेटस पे लोग आप देखिए, बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स हिंदी फिल्में करते हैं, हिंदी से उनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन जब कभी वो आपसे मिलेंगे कभी हिंदी में नहीं बात करेंगे। तो वो एक मेंटालिटी है वहां की कि मुझे हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ बोलना या इंडियन कल्चर से कुछ रिलेटेड बोलना, उसमें उनका लगता है कि थोड़ा उनके स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा बिलो जाएगा। तो मुझे वो कूल नहीं है, वो नहीं आएगा। आप अपनी कल्चर की बात कर ले, आप अपनी कंट्री की बात कर ले, तो उससे उनको थोड़ा सा, उनकी इमेज थोड़ी वो हो जाएगी, डाउन मार्केट हो जाएंगे वो, तो इसलिए वो नहीं चाहते इन सब चीजों में पढ़ना। और ये वाकई गलत है कि महाराष्ट्र में 2 साधुओं का वो वीडियो देखकर किसी को भी लग सकता है कि 2 इंसान को कैसे लोग लाठियों से पीट रहे हैं, और उस पे बॉलीवुड ने बिल्कुल चुप्पी साध ली थी। और कंगना रनौत ने वाकई जो डोज दिया था सभी एक्टर्स को, सही था वो, और उसमें मीडिया ने भी कंगना का पूरा साथ दिया, हर जगह वो खबर छपी कि बिल्कुल सही बात करी कि आपके 200 किलोमीटर दूर में 2 साधु मार दिए गए, आपकी मुंह से आवाज नहीं निकली। लेकिन आपने अमेरिका में जो हुआ उसके लिए पूरा बॉलीवुड एकजुट हो गया, जबकि अमेरिका वालों को कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा कि बॉलीवुड के लोग क्या सोच रहे हैं।
तो नीतू जी, जैसे कथुआ में हुआ तो ये लोग सब खड़े हो गए और उन्होंने देवस्थान और हिंदू देखिए, धर्म कठुआ केस की जो पूरी सच्चाई है वो उस समय सामने नहीं आई थी, लेकिन सब लोग तख्ती लेकर खड़े हो गए थे और उस समय तक उस केस में बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ था कि ये मामला है क्या। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिना पूरी जानकारी के लोग एक मुहिम चला देते हैं, लोग तख्ती पकड़ा देते हैं, लोग तख्ती लेके आ जाते हैं। तो उसमें भी मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत जल्दबाजी की थी। देश में हर रोज नीतू जी, हमारे एक देश के और कई सवाल है हिस्सों में। नीतू जी, एक और सवाल है आपसे, इसमें जी, पैसे और पीआर का कितना हाथ होता है? जैसे दीपिका पादुकोण चली गई जेएनयू, अब फीमेल सुपरस्टार हैं, तो देख, हाँ, मैं तो सच बताऊं कि दीपिका ने जो वो किया, उनके पीआर ने बहुत बड़ी गलती की। उनकी फिल्म मुझे लगता है कि कम से कम 50 करोड़ तक पहुंच जाती अगर वो जेएनयू नहीं जाती। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने फिल्म देखी, वो फिल्म अच्छी थी, लेकिन उनके खिलाफ इतना नेगेटिव माहौल बन गया कि लोग फिल्म देखने नहीं गए। तो जी, मुझे लगता है कि एक्टर को कई बार सोचना चाहिए कि अगर वो किसी एक पक्ष को खुश करने के लिए बहुत बड़े अपने फैंस को दुखी कर रही हैं, उस समय देश का जो माहौल था, थोड़ा सा उनको सोच के ये काम करना चाहिए था। इसमें पूरा का पूरा दीपिका का नुकसान हुआ था, इसमें कोई वो शक की बात नहीं। और उन्होंने इतनी अच्छी फिल्में की है, इतनी अच्छा अपना काम किया है, और उस दौरान सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, उनके बारे में जो लोग कमेंट्स लिख रहे थे, उसको पढ़ के हमें लग रहा था कि इसमें दीपिका का बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। रूना जी अगर उन्होंने सोचा होगा कि मेरी फिल्म क्या पता इससे चल जाएगी, तो उल्टा उनको बहुत नुकसान हुआ उससे। ये मेरी पर्सनल राय है, मैं आपको बताऊं। थैंक यू। आई एग्री नीतू, आप जो बोल रहे हो वो सही कह रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ये लगता है कि अभी तक हम लोगों के देखने सुनने में एक ही पक्ष आया है जो अपनी आवाज उठाता था। आज तक दूसरा पक्ष कभी आया ही नहीं, और क्यों नहीं आया उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन एक ही पक्ष बोलता रहा। ऐसा होना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा है या कोई लड़ाई हो रही है, तो कलाकारों के ऊपर क्यों ये बैन लग रहा है? कलाकार और कला तो पूरी सीमा, कोई सीमा नहीं होती। मुझे लगता है कि जो बैन लगाया गया है अभी, वो बहुत सही बैन है। हमारे देश से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से ये कलाकार पैसे कमा के जाते हैं, अपने देश में टैक्स भरते हैं, और वही टैक्स के पैसे उनकी सेना में जाते हैं, एग्जैक्टली खुफिया एजेंसियों को जाते हैं, उन आतंकवादियों को भी भेजे जाते हैं जिनको भारत के खिलाफ खड़ा किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान के सिंगर्स हमारे यहाँ गाना नहीं गा रहे हैं, पाकिस्तान के एक्टर्स हमारे यहाँ गाना नहीं गा रहे। हमारे देश के सिंगर्स को मौके नहीं मिलते, हम क्यों पाकिस्तान के सिंगर्स को मौके दें? मुझे मतलब, ये मेरी पर्सनल राय है कि हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं जो बिल्कुल आउट हो गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पाकिस्तान में अपनी फिल्म चलानी है, और फिल्म में पाकिस्तान का सिंगर डाल दो तो पाकिस्तान के लोग भी फिल्म देखेंगे। नो अग्री। एट द सेम टाइम मेरा ये कहना है कि आप इस तरीके से जो एक बहुत बड़े बड़े जुमले बोले जाते थे कि कलाकारों की कोई सीमा नहीं होती है, तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस। बिल्कुल बिल्कुल सीमा है। एग्जैक्टली सीमा होनी चाहिए, और अगर वो देश के खिलाफ जा रहा है तो मैं तो बात नहीं करने वाली किसी भी कलाकार से, फिर वो किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट से रहा है। आई थिंक ये जो सोच है ये कहीं डालना बहुत जरूरी हो गया था, और शायद इसलिए जो बात चल रही है ना कि वहां पर बैन लगा दिया गया। बिल्कुल लगाना चाहिए। आप यहाँ से कमा रहे हैं और आपका एक कलाकार आता है और जब उससे बात पूछी जाती है उरी अटैक के बारे में, तब वो चुपचाप बनकर निकल लेता है और अपने जब देश में पहुंचता है तब इस देश की बुराई कर रहा है। कैसे हिम्मत हो गई यार ऐसे लोगों को वापस लेने की? बैन बहुत जरूरी था। क्या ये सर्टेनली हम लोग नहीं, और अभी डिबेट अभी मुझे लग रहा है द कॉन्वर्सेशन इज हीटिंग अप एंड बिकमिंग बेटर, पर हमें बंद करना पड़ेगा क्योंकि मधुर जी को भी जाना है, 6:30 बज गए हैं। मेरा दूसरा जूम कॉल है अभी। पर अभी शुरुआत हो रही थी रियल डिस्कशन की। फिर और एक सेशन बिठाएंगे। Now we were actually getting into the discussion. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके, और इतनी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम एवरी एंगल, फ्रॉम द मीडिया एंगल, फिल्म मेकर एंगल, मेरा खुद का एंगल होता है, एंड फ्रॉम द व्यूअर्स एज वेल, जो हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू आर सिनेमा, हमारी फिल्मों में क्या होता है, उनकी क्या सोच है। तो ये बहुत ही एजुकेटिव सेशन था, क्योंकि
ज्यादातर हम लोग अकेले एकांत में ही काम करते हैं, तो बहुत रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटी, मुझे तो मैं अपने बारे में कहूँ बीइंग अ राइटर, बहुत रेयरली ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि पता चलता है कि पूरी दुनिया में फिल्मी जगत में क्या चल रहा है. सो आई रियली थैंक यू ऑल एंड आई होप मधुर जी ने कहा है वी शुड मीट अगेन एंड टॉक अगेन, क्योंकि डेफिनेटली तो 100%. हमने एंड की तरफ थोड़े टॉपिक्स पिक किए. दे वर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल्दो अरुण जी गुस्सा होंगे वी डिडंट स्टिक टॉपिक, मुझे मैसेज पे मैसेज और कॉल पे कॉल आ रही थी, बट आई थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डिस्कस, और हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीमिंग जो हमारी समाज में और एक्चुअली एवरीवेयर होती है, इट कम्स फ्रॉम फिल्म्स, so we have to understand this medium better. So thank you so much and thank you थैंक यू Arun. अद्विता, थैंक यू सो मच, लवली कैचिंग, थैंक यू सो मच, सब लोग से मिलके मजा आया, थैंक यू, Namaskar. थैंक यू. Thank you.